Good evening, friends. Welcome to this platform CASA, and we are going to have a 4 days learning series, Excel training program for professionals. In this series, we are going to learn various topics as per schedule we have shared. We have with us our eminent expert, today's expert, CA Vikal Jain ji. Vikal ji, welcome to you on this platform, Team CASA. धन्यवाद सर, बहुत बहुत Thank you. As we know, Vikalji, first time delivering a session on this platform, I would like to tell you about, in short, about CASA. It is a online learning program and physical organizing session, and it has started in 2010. So 13-year journey, we have organized various training program, sessions, seminars, sport activities, CSR activities for the benefit at large, social benefit at large. In this series, we are now organizing this Excel training where we are going to have a full learning on the practical aspect, how we can as a professional learn about Excel, and we can improve our efficiency in day-to-day activities. So we have 4 faculties, one today's CA Vikal Jain ji, tomorrow CA Nikita Maheshwari ji, day after tomorrow, Sunday, it is 12 p.m. Kailash Sharma ji, and Monday, CA Deepak Tail ji. So in 4 days, we will learn definitely new things, new formulas, so that we can easy our working style. And if you have any query, you can post in the chat box, Vikal ji, and we will try to address those issues. And apart from those, any feedback you can share in the last to my number or any other things. And definitely video recording and presentations shall be shared in due course to everyone. About Vikal Jain ji, just I would like to brief about him. He is a fellow chartered accountant, diploma holders in IFRS India, BCom honors from Delhi University. Apart from this, he is having a good computer skill, in which he is having a wrote booklet on the Excel statics, Excel basic to advanced, and so on. He has many fan following on the Facebook and other social media platform. He's having knowledge of more than 250 formulas in Excel, macros, and VBA. He is certified from Microsoft in MOS 2013. He is having his own practice and in the name of Vikal Jain and Associate, and having a institute, BCom Institute of Private Limited, as an Excel trainer. Apart from this, he's very good academician and definitely serving professional society at large by way of spreading knowledge. So Vikalji, thanks to you for giving me your precious time to address the members at large. And now I hope members will definitely learn the topic. और आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं विकल जी के थ्रू. सो विकल जी, ओवर टू यू फॉर योर सेशन. सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुमित जी का, उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है. तो बेसिकली मैं अपने बारे में थोड़ा सा आज के जैसे के हम बारे में मैं क्या करने वाला हूँ, हम जो आप बेसिक लर्निंग कर रहे हैं डेली यूज में, हम वही फंक्शन सीखेंगे. आपका सम फंक्शन आप जनरली अच्छी तरह से सारे जानते हैं. वी लोग का बहुत सारे लोग आज भी जानते हैं, और अभी भी कुछ लोग ऐसे बचे हैं जो नहीं जानते हैं, जबकि मार्केट में आज की डेट में एक्स लुकअप भी आ गया है. तो हम उन्हीं फंक्शन को थोड़ा सा और वाइड करेंगे. तो हम उनकी ऐसी चीज़ों को सीखेंगे जो शायद आपने कभी यूज ही नहीं किया होगा. तो हम उनको और थोड़ा वाइड लेके जाएंगे. और अब शुरू करता हूँ. मैं बस एक बार अपने स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. श्योर विकल जी. एंड टाइमिंग की ऑल डेज 6 PM एंड संडे एक्सेप्ट संडे इज 12 to 2 PM. ओवर. सर सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस विकल जी. ओके. तो बेसिकली मुझे 2-3 वॉलंटियर्स चाहिए होंगे. मतलब मुझे वॉलंटियर्स क्यों चाहिए होंगे, जैसे मुझे एक्सेप्टेंस के लिए चाहिए होंगे. जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि ये फंक्शन आता है या आप कैसे करते हैं, तो आपको एक आधे
हाँ जैसे मतलब एक द पीपल प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा सा आप मेरा सपोर्ट करें। Vikal ji, we have not allowed unmuting, otherwise it will create. I think chat box will be sufficient कि यस members यस आप यस पूछोगे। इट वुड बी अ ग्रेट इनफ। सो हाँ। बेसिकली क्या करना है, सिंपल आपको यस और नो में आंसर देना है, या फिर अगर आप थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं तो जस्ट एक वन लाइन सेंटेंस, ताकि हम ज्यादा टाइम ना ले, अपना 2 घंटे में जो टॉपिक है वो कवर कर लें, बस इतना ही अपने को चाहिए। Perfect. नाउ हम जो स्टार्टिंग करेंगे आज के सेशन की, सबसे आसान फंक्शन से करेंगे, सम फंक्शन। सम फंक्शन हालांकि मुझे लगता है आपको सबको आता होगा सम फंक्शन, तो मैं सही हूँ, सबको आता है सम फंक्शन या किसी को नहीं आता है सम फंक्शन? आई थिंक सभी को आता है। तो एक बार सम फंक्शन की बात कर लेते हैं। व्हाट सम फंक्शन डज? सम फंक्शन बेसिकली डू द समेशन ऑफ ऑल दी रिकॉर्ड्स। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं सम फंक्शन लगाना चाहूँ तो आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास इवन टिल 73 रो तक मेरे पास सम आ रहा है। मैं यहाँ पे सम नहीं करने वाला हूँ, मैं सिंपल एक सम फंक्शन नहीं सिखाने वाला हूँ। नाउ मैं यहाँ पे थोड़ा सा सम फंक्शन को चेंज करूंगा, मैं उस सम फंक्शन को नाम दूंगा 3D सम। अब 3D सम में कैसे नाम दूंगा? सिंपल आप एक इमेजिन करिए, आप एक एमएनसी में है या एक बैंक में है, आप रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, बेसिकली आपने डे 1 की रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर ली या मंथली रिपोर्ट आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपने शीट 1, यू कैन से इट एज मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5, मंथ 6 एंड मंथ 7। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे इन सबका सम करने वाले। अब मैं आपसे पूछूं कि आप इतने सारे रिकॉर्ड्स का सम करने वाले हैं। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर से कोई रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो होता क्या है, जनरली सॉफ्टवेयर ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही रिपोर्ट देता है आपको हर बार। अगर आपका सपोज इनवॉइस नंबर यहाँ लिखा हुआ है या जीएसटी नंबर यहाँ लिखा हुआ है या आपका टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमेशा वो रिकॉर्ड वैसे ही एक्सट्रैक्ट करता है। तो हमें हमेशा कॉलम की नेम का फायदा जरूर मिलता है, चाहे रो का फायदा मिले ना मिले। अब आप देखेंगे मेरे इस समय एग्जाम्पल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। क्या है एम्बिग्यूटी? आप देखेंगे शीट 2 पे भी मेरे पास 73 रो है, शीट 3 पे भी 73 रो है, शीट 4 पे भी, एंड शीट 7 तक मेरे पास 73 रो है। मैं क्या करूंगा, इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करके भी डील करूंगा। अब हम बात करते हैं सिंपल सा, मुझे करना क्या है, इन सारी शीटों का सम करना है और यहाँ पे लाना। नाउ व्हाट आरएन मींस, रैंडम नंबर 1, रैंडम नंबर 2, रैंडम नंबर 3। तो आप इसे डेटा विजुलाइज कर सकते हैं या आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं आप उसे वो विजुलाइज कर सकते हैं। अब सिंपल सा आपका कंसर्न ये है कि आपको करना क्या है, इन सबका सम लेके आना है, इन सारी शीटों का सम लेके आना है आपको यहाँ पे। Rn1 का टोटल यहाँ पे लाना है, Rn2 का टोटल यहाँ पे लाना है टिल 7 शीट। सो आप कैसे करेंगे जनरली, अगर आपको सम फंक्शन पता है? एनीवन? एनीवन वांट टू डाई? एनीवन? ओके। सो बेसिकली हम क्या करते हैं आज की डेट में, अगर मैंने आपको सिर्फ 7 शीट दी है, अगर मैं आपको 100 शीट दूंगा तो व्हाट वी जनरली डज, हम क्या करते हैं, पहले एक को सम करते हैं, इस तरह से सम करते हैं, या फिर नीचे टोटल कर लेते हैं। देन व्हाट वी डज, हम यहाँ पे फिर शीट 2 पे आते हैं, इसी तरीके से सारा कुछ करते रहते हैं। तो आप देखेंगे ये प्रोसीजर कितना लेंदी है, और इसमें रिजल्ट आप देखेंगे थोड़े से ना, आपके रिजल्ट गलत आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर हम बात कर रहे हैं मंथली रिपोर्ट्स की या डेली रिपोर्ट्स की, तो आप देखेंगे थोड़ा सा रिजल्ट ये आपका गलत देगा। यहाँ पे मेरे एक्चुअली क्या है, मेरा रैंडम नंबर का फंक्शन लगा हुआ है, तो मैंने ये फंक्शन गलती से डिलीट नहीं किया है, मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि रैंडम फंक्शन की क्वालिटी है ये अपडेट करता रहता है। तो मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट एज वैल्यूज करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जांपल थोड़ा सा समझ में आएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यूज पेस्ट कर देता हूँ इसी के ऊपर। सिमिलरली मैं यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। मैं बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल अपना फॉर्मूला हटा रहा हूँ। नाउ अब मैं आपको इसी में एक चीज बताना चाहता हूँ सम फंक्शन से पहले। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इन सारी शीट्स का फॉर्मूला हटाना चाहता हूँ, मैंने जानबूझ के ही फॉर्मूला नहीं हटाया था। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर मैं सारी शीट को सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर से काम कर रहे हैं या किसी भी रिपोर्ट से काम कर रहे हैं जो हमेशा फिक्स फॉर्मेट में देता है, तो अगर मैंने सारी शीटों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लिया है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप देखेंगे 7 शीट तक बिल्कुल ये व्हाइट हो गई। नाउ अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं किसी भी सेल को कलर कर दूंगा, लेट्स से आई एम कलरिंग B5, तो एक्सेल का जैसे ही आपने शीटें सिलेक्ट करी है मल्टीपल, एक्सेल का ग्रुपिंग फीचर इनेबल्ड हो चुका है। मतलब
अब मैं जैसे ही शीट 2 पे जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे भी B5 कलर हो चुका है, यहाँ पे भी B5 कलर हो चुका है, एंड शीट 7 तक आपके B5 जो सेल थे वो सारे कलर हो गए। तो इसी तरीके से अगर मुझे सारी शीटों का फॉर्मूला हटाना है एक ही बार में, तो आप क्या कर सकते हैं, सारी शीटों को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एंड इसके ऊपर मैं पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज कर दूंगा, कंट्रोल अल्ट वी, एंड आप देखेंगे वैल्यूज, मैंने वैल्यूज पेस्ट कर दी, तो जितनी भी साथ की साथ शीटें होंगी सबके ऊपर फॉर्मूला आपका हट जाएगा। तो ये आपका ग्रुपिंग फीचर है जो आपका मल्टीपल शीट्स के साथ काम करता है। आप मल्टीपल शीट को क्विकली फॉर्मेट कर सकते हैं, इवन 1 मिनट से भी अंदर आप बिल्कुल फॉर्मेट कर पाएंगे। अब आप बात करते हैं वापस सम फंक्शन की। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूले जो है अपने रैंड बिटवीन वाला हटा दिया है, अब मेरे रैंडम नंबर दोबारा अपडेट नहीं होंगे। तो अब मुझे अगर इन सबका सम करना है, जनरली हम इस टाइप के सम को कहते हैं 3D सम। तो अब हम करते क्या है, हम क्या करेंगे, सिंपल एक फंक्शन टाइप करेंगे सम फंक्शन। अगर आपने सम फंक्शन को कभी एक शीट पे विजुलाइज करा होगा तो अब मैं सिंपल एक शीट पे विजुलाइज करके देखता हूँ। तो जैसे ही अब मैं सम फंक्शन लगाता हूँ, यहाँ पे मुझे एक रेंज देता है A3 to A73। इट मींस ये शो कर रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल सेल्स हैं A3 से A73। तो क्या हम मल्टीपल शीट्स पे भी लगा सकते हैं? यस। ये आपका एक्सेल का एक नया क्या, एक आपका जो अनरिवील्ड फीचर है। तो आप बेसिकली बात कर सकते हैं, अगर मैं शिफ्ट की दबाता हूँ अपने कीबोर्ड से, शिफ्ट की दबा के और लास्ट शीट पे आता हूँ, शीट 7 पे, तो आप देखेंगे इसने रेंज की बजाय अब की बार शीट का नाम सेलेक्ट किया हुआ। मैं दोबारा कर लेता हूँ, मैं सिंपल प्रेस करूंगा इक्वल सम, एंड मैं जैसे ही लास्ट शीट पे आऊंगा, शिफ्ट की होल्ड की हुई है मैंने, एंड शीट 7। तो आप देखेंगे अब इसने मेरी इतनी सारी शीटें सिलेक्ट कर ली हैं। अब मैं सिंपल, क्योंकि मेरा डेटा फिक्स है तो मैं एक बार सिंपल डेटा फिक्स को लेकर चलूंगा, मैं स्टिल 73 तक सेट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसे कहते हैं हम 3D सम। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल शीट भी सिलेक्ट कर ली है और मल्टीपल सेल्स भी सिलेक्ट कर ली है। तो अब हम इसे सिंपल क्लोज कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी शीटों का सम आ गया, एक साथ सातों की सातों शीट का सम आ गया। तो थोड़ा सा हमें बस याद रखने की चीज ये है कि यहाँ पे शिफ्ट की दबानी है, अदरवाइज ये आपका काम नहीं करेगा। तो आपको लास्ट शीट पे लाके क्लिक कर देना है शिफ्ट की दबा के, तो आपका इस तरह से ये सम फंक्शन काम करता है। और अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये B73, तो इसने ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया है। तो मुझे सारी शीटों का सम मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि व्हाट इफ यहाँ पे अभी हमारे पास सेम रिकॉर्ड है, हर शीट पे 73 तक रिकॉर्ड है। नाउ अगर होगा क्या, अगर मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड, हो सकता है कि मेरे पास लेट्स से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, इसे मैं डिलीट कर दूं या किसी को नोट करना है? ओके, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड ले रहा हूँ। नाउ यहाँ पे लेट्स से मेरे पास शीट नंबर 1 में ओनली 2 रिकॉर्ड्स हैं, शीट नंबर 2 में लेट्स से आई हैव 8 रिकॉर्ड्स, शीट नंबर 3 में लेट्स से वी हैव 73 रिकॉर्ड्स, शीट नंबर 4 में लेट्स से वी हैव 17 रिकॉर्ड्स, एंड शीट नंबर 5 में वी हैव ओनली 1 रिकॉर्ड। नाउ here we have 12, now here we have 8, now here we have different records। so अब मुझे कोई गाइड कर सकता है कि अब हम कैसे करने वाले हैं इस 3D सम को? एनीवन? आप चैट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। एक ये शमा चौधरी जी का क्वेश्चन है कि व्हाट इफ वी वांट टू स्किप सम शीट्स। सो आप शिफ्ट की जगह कंट्रोल की दबाएं, कंट्रोल की से आप एक एक करके सिंपल सेट कर लें। यस, बेसिकली एक पर्सन इस आंसर सही दिया है। इस केस में हमें करना क्या होगा, सेम एग्जांपल रहेगा, सेम आपका फंक्शन रहेगा, इक्वल सम रहेगा। नाउ इस बार मुझे नहीं पता कि मेरे रिकॉर्ड्स कितने डाउन हैं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ से प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। व्हाट it will do, so it will take us to the end of the sheet, A3 to the last cell of the sheet।
लेट मी जस्ट डू इट वंस अगेन, सम, एंड पहले सेल पे आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो आप देखेंगे ये मुझे बिल्कुल लास्ट सेल पे ले आएगा। तो मैं अब यहाँ पे अगर मैं इसी सीट की बात कर रहा हूँ तो सिंपल मेरा इसी सीट का सम हो जाएगा टिल द एंड। मुझे नहीं पता कितने सेल्स हैं, तो मैं सिंपल इस रेफरेंस का फायदा लेने वाला हूँ। यहाँ पे अब की बार क्या करूंगा, मैं सिंपल दोबारा कंट्रोल शिफ्ट की दबाऊंगा और सारे शीट को सेट कर लूंगा ऐसे। अब मैं सिंपल सम फंक्शन लगाने वाला हूँ, सम, और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड क्लोज द पैरेंथेसिस एंड एंटर, एंड यू कैन सी द रिजल्ट इज स्टिल कमिंग। नाउ आपको टेंशन नहीं है कि कितने सेल आपके हैं, 73 है, 23 है, 1 है, 2 है। तो आपका ये 3D सम इस तरह से काम करता है। आप देखेंगे कितना टाइम ये आपका MNC में बचा लेगा। एनी क्वेश्चन इन दिस? शुड वी मूव ऑन? हितेश अरोड़ा जी कहते हैं कि कन्वर्ट दिस इनटू अ टेबल। अगर आप टेबल में कन्वर्ट कर देंगे तो बेसिकली क्या होगा, टेबल में आप नए रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो उसको फॉर्मेट में ले लेगा, बट टेबल में आपका ये सम ऐसे ही होगा। यस, टोटल इज showing only on one sheet. Yes, exactly. You can see my mistake. मैंने कुछ गलती की है यहाँ पे, मैं दोबारा एक बार करता हूँ। मैंने गलती से सारी शीट्स पहले सेट कर ली थी। Just let me just do it once again. आपका आंसर जो है हमेशा एक ही शीट पे आएगा। यस, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। इक्वल सम, शिफ्ट की होल्ड कर लेंगे शीट 7 तक, एंड अब आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर। आप देखेंगे ग्रुपिंग फीचर यहाँ पे नहीं है। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप एंड एंटर। यू कैन सी आपका बाकी शीट पे आंसर नहीं आएगा, ओनली एक ही शीट पे आंसर आएगा। दिस इज नॉट वर्किंग ऑन मल्टीपल शीट। सर ये मल्टीपल शीट का ही तो टोटल यहाँ पे ला रहा है, एक ही शीट पे। आपको अलग अलग शीट पे टोटल क्यों चाहिए? ये आपका क्या कर रहा है, इस शीट का टोटल नहीं ला रहा है ये आपका। अगर आपको मल्टीपल शीट का टोटल चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लेट्स से रिस्पेक्टिव शीट का टोटल चाहिए। अब मुझे थोड़ा सा एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करूंगा। शीट 1 का टोटल शीट 1 के इस 1 रो में चाहिए, शीट 2 का टोटल आपके अपर रो में चाहिए, शीट 3 का टोटल यहाँ पे चाहिए, और शीट 4 का यहाँ चाहिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए ग्रुपिंग फीचर यूज कर सकते हैं। आपको ये 3D सम यूज करने की जरूरत नहीं है। 3D सम क्या कर रहा है, 3D सम सारी की सारी 7 शीटों का टोटल एक ही शीट पे ला रहा है। तो आपको मल्टीपल शीट का रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। सर अगर आप डिफरेंट रो चूज करते हैं तो आपको फिर 3D सम की जगह मैनुअल सम करना पड़ेगा। 3D सम हमेशा ग्रुपिंग फीचर में काम करता है। मैं आपको ग्रुपिंग फीचर का बता दिया मैंने रेफरेंस। ग्रुपिंग फीचर अगर आप एक शीट पर अपडेट करेंगे तो मल्टीपल शीट पे वैसे ही चेंज होते जाएगा। अगर आप एक शीट पे भी लुकअप लगाएंगे तो मल्टीपल शीट में भी लुकअप लगता जाएगा। तो ये आपका ग्रुपिंग फीचर है। अब थोड़ा सा आगे चलें। सर आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें हमारे पास सब टोटल भी एक फंक्शन है जो कि काम करता है एज ए सम फंक्शन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सब टोटल? नाउ अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सिंपल सम फंक्शन लगाता हूँ, सम फंक्शन, एंड मैं डेटा को सेट कर लेता हूँ एंड एंटर। नाउ मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे सम लगाया है। नाउ आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सब टोटल। दोनों एक ही काम करते हैं। नाउ लेकिन मैंने यहाँ पे सम फंक्शन लगाया। अब मैं इसको फिल्टर लगाता हूँ। कभी कभी आप ये भी काम कर रहे होते हैं, आप मैनुअली चीजें चेक कर रहे होते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ। फिल्टर की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। नाउ आप देखेंगे मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा लिया है और मैं सिंपल चूज कर रहा हूँ लेट्स से एक रीजन ईस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे ईस्ट तो आ गया बट टोटल मेरा चेंज नहीं हुआ। तो मुझे क्या चाहिए, जब भी मैं यहाँ पे कोई रीजन चेंज करूँ, जब भी लेट्स से मैं ईस्ट की बजाय साउथ कर दूं या नॉर्थ कर दूं या वेस्ट कर दूं, तो यहाँ पे ये टोटल अपडेट हो जाना चाहिए। तो इस चीज को डील करता है आपका सब टोटल। सब टोटल जो आपके हिडन रोज होते हैं उनका टोटल कंसीडर नहीं करता है, आपका उसको एक्सक्लूड कर देता है। बट सब टोटल के पास मैं आपको दिखाता हूं, आप देखेंगे सब टोटल के पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो अगर आपको सम चाहिए आपको 9 लिखना पड़ेगा,
अगर आपको मैक्स चाहिए आपको 4 लिखना पड़ेगा, अगर आपको काउंट चाहिए तो 2 लिखना पड़ेगा। तो अगर मुझे सम चाहिए आई एम राइटिंग 9, नाउ कॉमा, नाउ मुझे यहाँ पे रेफरेंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे सिंपल रेफरेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ B3 till end, नाउ प्रेस एंटर। नाउ यू कैन सी द सम इज स्टिल कमिंग सेम। नाउ मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एंड मैं फिल्टर लगाता हूँ। नाउ आप देखेंगे अगर मैं नोट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे दिस टाइम इट इज शोइंग ओनली नोट रीजन टोटल एंड ईस्ट ईस्ट। तो अगर आपको किसी को रिपोर्ट मेल करनी है टोटल के साथ आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं जनरली टोटल को नीचे नहीं लगाता डेटा के, मैं हमेशा डेटा के ऊपर रेफर करता हूँ, बिकॉज आपको पता नहीं होता कि आपकी कितनी रोज हैं यहाँ पे डेटा के अंदर। 1 लाख भी हो सकती हैं, 70 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, तो आपको नहीं पता। मैं हमेशा इसलिए ऊपर आपको हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ। आप भी मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आप ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आपको नीचे के डेटा के लिए बेसिकली कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। yes we can use subtotal as 3D sum। जहां भी रेंज की बात हो रही है हमेशा आप रेंज के साथ 3D लगा सकते हैं, तो आपका हमेशा ये ऐसे ही आएगा। मेरे पास यहाँ पे 3D का डेटा नहीं है, नहीं तो मैं आपको लगा के दिखाता। आपको सिंपल क्या करना है, शिफ्ट की दबा के शीटों को मल्टीपल शीट को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर लेना है। तो आप इस तरह से 3D सबटोटल भी लगा सकते हैं। नाउ हमारे पास एक्सेल में कभी आपने विजुअलाइज नहीं किया होगा, हमारे पास 3 सम फंक्शन दे रखे हैं उन्होंने। पहला सम दे रखा है, दूसरा सबटोटल दे रखा है, तीसरा हमें एक और फंक्शन दे रखा है दैट इज एग्रीगेट। तो थोड़ा सा सम फंक्शन के और आगे हम चलेंगे, एग्रीगेट। नाउ अब आप देखेंगे रिपोर्ट सेम है बट थोड़ी सी चेंज है रिपोर्ट में। सर मैं 3D फंक्शन आपका रिपीट कर दूंगा, बट अब सेशन के बाद रिपीट करूंगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर एग्रीगेट की। नाउ हमारे पास सर 3 फंक्शन है, सम, तो सब टोटल एंड एग्रीगेट। नाउ अब आप देखेंगे डेटा में थोड़ा सा डिफरेंस है पुराना सब टोटल के साथ। यहाँ पे हमारे डेटा में एक भी एरर्स नहीं थी, और यहाँ पे हमारे पास डेटा के अंदर बहुत सारी एरर्स हैं। मुझे नहीं पता किस किस सेल में एरर है, किस किस सेल में एरर नहीं है। नाउ अब मुझे क्या करना है, लेट्स से मुझे मेरे बॉस ने ऑर्डर दे दिया कि भाई एक तुरंत मेरी शीट पे टोटल लेके आओ। मैं क्या करूंगा, जनरली वो मैं फिल्टर लगाऊंगा और यहाँ पे एक एक एरर चेक करूंगा, एरर किस किस सेल में है और एरर को हटाऊंगा। अगर मुझे इस एग्रीगेट फंक्शन का नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से डिलीट करूंगा। सिमिलरली मैं यहाँ से करूंगा, इस तरह से करता चलूंगा और फिर मैं यहाँ पे सम करूंगा या सब टोटल करूंगा, जो भी आपकी इच्छा है। नाउ एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, सेम चीज करता है। अब आप देखिए एग्रीगेट आपका कितना टाइम बचाएगा। एग्रीगेट सब टोटल का थोड़ा सा एडवांस है, तो आप देखेंगे एग्रीगेट यहाँ पे आप देखेंगे अगेन 9 आ रहा है सम के लिए, 9 कॉमा। नाउ यहाँ पे ये पूछता है डू यू वांट टू इग्नोर एरर वैल्यूज, यस आई वांट टू इग्नोर इट। सो आप सिंपल प्रेस कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फीचर है, इग्नोर हिडन रोज, इग्नोर एरर वैल्यूज हिडन। सो आपके पास अगर आप एरर को इग्नोर करना चाहते हैं सिंपल प्रेस कर सकते हैं 6 कॉमा। नाउ अगेन यू नीड टू चूज रेफरेंस। जब भी आप एक्सेल में अरे वर्ड देख रहे हैं, अरे का मतलब होता है रेफरेंस, सो आपको हमेशा रेंज को सिलेक्ट करना होता है। अरे का मतलब होता है इन शॉर्ट फॉर्म रेफरेंस। सो नाउ मैं यहाँ पे रेफरेंस चूज कर लेता हूँ। नाउ कंट्रोल क्लोज द पैरेंथेसिस एंड एंटर एंड यू कैन सी आपका अब की बार जो टोटल आया है सारी एरर्स को इग्नोर करते हुए आपका टोटल आया हुआ। अब मुझे किसी भी एरर को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल अपने टोटल को इस तरह से भी निकाल सकता हूं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सब टोटल एंड एग्रीगेट। एनी क्वेश्चन इन सब टोटल एंड एग्रीगेट? ओके, सो अब हम अपने पुराने स्कूल पे चलते हैं, जैसे कि हमारा हमेशा कंसर्न रहता है वीलुकअप के रिगार्डिंग। सो वीलुकअप हमारे डेली यूज में बहुत काम आता है। मैं सिंपल एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है वीलुकअप का, आप देख सकते हैं वी हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स हियर। सो ये रहे प्रोडक्ट्स एंड मेरे पास 127 प्रोडक्ट्स हैं, इनके प्रोडक्ट कोड्स हैं एंड HSN है, क्वांटिटी है, टैक्सेबल वैल्यू है एंड स्टेट है। सिंपल मैं यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा वीलुकअप लगाने वाला हूँ।
लेट्स से आई वांट टू फाइंड द HSN कोड। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जनरली लोगों को VLOOKUP आता ही है, तो मैं एक VLOOKUP सिंपल सा ट्राई कर लेता हूँ। यस, आपका एग्रीगेट फंक्शन फिल्टर में काम करता है। नाउ अब यहाँ पे VLOOKUP की बात करते हैं सर। अब थोड़ी सी क्वेरी जो सम और एग्रीगेट और सबटोटल की है वो आप प्लीज सेशन के लास्ट में पूछिएगा। अब हम थोड़ा सा मूव ऑन कर चुके हैं। नाउ अब बात करते हैं सर VLOOKUP की। VLOOKUP में आपका सिंपल सा ट्राई करने वाला हूँ। अगर आप बात कर रहे हैं लुकअप वैल्यू की, लुकअप वैल्यू आपका प्रोडक्ट है। नाउ टेबल अरे, नाउ एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द टेबल अरे इन माय डेटा? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय टेबल? Is this A2, B2 and C2? Yes, it can be C2 or C3. Now I am just selecting from C2 till and you can see now here we have 5 columns and 128 rows. Now we need to lock it, press F4 key, comma, column index number. If we are finding HSN, then column index number would be 2. Now for exact match I will select 0 and enter. Now आप देख सकते हैं मैंने सिंपल सा HSN कोड निकाल लिया है। अब सर मुझे इसी फॉर्मूले को ना ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर आप बात करें बहुत सारे डेटा की, तो आप जनरली क्या करते हैं, मैं बताता हूँ मेरे ऑफिस के कलीग्स क्या करते हैं। मैं इसको कॉपी करते हैं एडिट मोड में इस तरह से कॉपी करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। व्हाट दे जनरली डू, चेंज दिस टू 3, सेम हियर 2 4। नाउ मैं जनरली थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस करता हूँ। यहाँ पे हम VLOOKUP में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इस बार हम VLOOKUP में क्या करेंगे, अब हम VLOOKUP को जोड़ेंगे रो फंक्शन एंड कॉलम फंक्शन के साथ। नाउ मैं आपको बताता हूँ पहले रो फंक्शन करता क्या है। मैं यहाँ पे सिंपल सा एक रो लिखता हूँ, रो। नाउ एक्सेल में 2 फंक्शन है, एक है रो, एक है रोज। मैं रो फंक्शन की बात कर रहा हूँ अभी। सो जैसे ही मैं यहाँ पे रो लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे देता है 1 because it is row number 1. Let's talk about column. Now, sorry, I am choosing I1, close the parentheses and enter, and you can see it is giving me 9 because we are standing on 9 column. You can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So here we have 9. अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 9th कॉलम है, 10th कॉलम है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। तो इसे मैं अगर मैं VLOOKUP में जोड़ दूं तो मुझे ये बार बार एडिट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और मेरा मल्टीपल VLOOKUP लग जाएगा। तो जस्ट 1 मिनट के लिए मैं स्टॉप शेयरिंग करूंगा, मेरे सिस्टम में हल्की सी दिक्कत आ रही है। यस, are you getting my screen once again? Yes, विकल्प भाई। ओके, नाउ मैं इस फॉर्मूले को डिलीट करता हूँ और एक बार दोबारा से मैं इस VLOOKUP को ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा हम VLOOKUP को मॉडिफाई कर रहे हैं। आप देखेंगे हम कितना टाइम बचा सकते हैं VLOOKUP को लेके। अभी मैं VLOOKUप के साथ इंटरसेक्शन लुकअप भी ट्राई करने वाला हूँ। सो लुकअप वैल्यू वुड बी दिस वन। नाउ कॉमा टेबल अरे, अगेन वी नीड टू सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट टिल एंड, लॉक इट F4। नाउ कॉलम इंडेक्स नंबर मैनुअल डालने की बजाय what we will do, we will simply try column function. Now column function, as I am standing on L3, so मैं L3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं L3 पे एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे it will show me number 12. Everyone is getting my point or not? मैं दोबारा करके दिखाता हूँ सर। मैं सिंपल यहाँ पे कॉलम नंबर चूज कर लेता हूँ, कॉलम एंड यहाँ पे L3 डालता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे दिखाएगा कॉलम नंबर 12 बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन कॉलम नंबर 12। अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो आप देखेंगे एवरी टाइम इट विल शो मी कॉलम नंबर 12 व्हेन व्हाट इफ आई एम गोइंग टू डील विद रो फंक्शन।
रो एंड दिस सेल। सो आपकी रो नंबर 3 है, तो मैं अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये जो रो नंबर है कॉलम नंबर है, ये बेसिकली जो आपके साइड में दिए हुए हैं ना नंबर्स या ये अल्फाबेट्स, इनसे नंबर ड्राइव कर रहा है। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, देखेंगे 3 3 4 4 5 5। तो इस तरह से ये आपका रो फंक्शन एंड कॉलम फंक्शन आपके नंबर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे VLOOKUP को इन्हीं फंक्शन के साथ थोड़ा सा जोड़ने वाला हूँ। नाउ मैं VLOOKUP ट्राई करने वाला हूँ। VLOOKUP lookup value is this one, table array is this one, lock, comma, now column function and L3। now जैसे ही मैंने L3 पे एंटर प्रेस किया, इसने मुझे 12 शो किया, बट मेरा एडजेसेंट जो कोड है वो नंबर 2 पे, आप देखेंगे नंबर 2 1 एंड 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 की बजाय माइनस करना पड़ेगा 10, क्योंकि अगर मुझे इस 12 को 2 बनाना है तो मुझे 10 माइनस करना पड़ेगा, तभी आप देखेंगे। अगर मैं आप किसी भी फंक्शन को इवेल्युएट भी कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। आप सिंपल क्या करें, उस डेटा को सिलेक्ट कर लें और प्रेस करें F9 की। F9 क्या करती है, उस फंक्शन को इवेल्युएट करती है। कभी भी आप मल्टीपल फंक्शन ट्राई कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, F9 की प्रेस करके आप इवेल्युएट कर सकते हैं। F9 की आप देखेंगे यहाँ पे 2 आ रहा है, तो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 आ रहा है। नाउ सिंस वी हैव यूज कॉलम फंक्शन, तो माय VLOOKUP इज मोर डायनामिक। प्रेस Ctrl Z, कॉमा एंड 0। नाउ मुझे यहाँ पे बस K कॉलम को लॉक करना पड़ेगा एंड एंटर। सर डायरेक्ट नंबर में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे कॉलम फंक्शन को जो यूज करने का मोटिव है ना, वो बस थोड़ा सा टाइम बचाने का मोटिव है। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, तो आप देखेंगे अब मेरा डेटा कितना ही बड़ा हो और कैसे भी घूम रहा हो, मैं सिंपल कॉलम फंक्शन एंड रो फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। और अगर आप ऑफिस 365 की बात कर रहे हैं, तो ऑफिस 365 में आपका सीक्वेंस फंक्शन भी काम कर सकता है। आपको रो फंक्शन एंड कॉलम फंक्शन में कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? ओके, नाउ सर बात करते हैं इंटरसेक्शन की। अभी हम इस वाले एग्जांपल भी आएंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करने वाले हैं इंटरसेक्शन की। नाउ मुझे यहाँ पे VLOOKUP ट्राई करना है और VLOOKUP से वैल्यू निकालनी है मार्च प्रोडक्ट 4 की। नाउ आप देखेंगे दिस टाइम मेरा डेटा इज इन दी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट एंड इन दी वर्टिकल फॉर्मेट। नाउ मुझे क्या करना है, VLOOKUP यूज करना है एज ए इंटरसेक्शन। सर फंक्शन याद कैसे रहेंगे? सर फंक्शन तो प्रैक्टिस से याद रहेंगे सर। मैं अपने फंक्शन को डेली यूज करता हूँ अपनी लाइफ में। F4 की इज द लॉक की। नाउ सर क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर आप एंड में पूछेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। नाउ बात करते हैं सर इंटरसेक्शन की। मैं आपको इंटरसेक्शन को बताने से पहले मैंने आपको दो फंक्शन का लिखा हुआ है, इंडेक्स एंड मैच। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक फंक्शन जिसका नाम है मैच फंक्शन। व्हाट मैच फंक्शन डज, आपके एक्सेल में एक मैच फंक्शन है जो कि सबसे ज्यादा डायनामिक है। अगर आप इसे VLOOKUP के साथ जोड़ देते हैं तो आपका VLOOKUP एज ए इंटरसेक्शन भी काम करना शुरू कर देता है। तो अगर बात करता हूँ मैच फंक्शन की, सो मैच फंक्शन क्या करता है, मैच फंक्शन किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी वर्ड की पोजीशन बताता है, सिंपल पोजीशन बताता है। जैसे अगर मैं प्रोडक्ट 4 की बात करूं तो मेरा प्रोडक्ट 4 जो है वो 4th नंबर पे, यहाँ पे देखेंगे आप 4 नंबर पे है, और मेरा मार्च जो है वो 3rd नंबर पे है, 1 2 एंड 3। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैच की, मैच lookup value is this one, comma lookup array means range, so lookup array is this one. Now lock it, मैच टाइप आप VLOOKUP में भी एग्जैक्ट मैच करते हैं, यहाँ पे भी एग्जैक्ट मैच करेंगे तो 0। नाउ एंटर, आप देखेंगे इट इज टेलिंग मी 3rd नंबर। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं मार्च से जून, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है 6 नंबर। यहाँ पे मुझे क्या ट्राई करना है, अब VLOOKUP ट्राई करते हैं इसी मैच फंक्शन को यूज करते हुए। मैं यहाँ पे दोबारा लगा देता हूँ मैच फंक्शन। मैं आपको दूसरे तरीके से भी फॉर्मूला को जोड़ना सिखाता हूँ। lookup value is this one, lookup array is this one, lock 0 and enter. Now match function is telling me 6 number, and if I will change this May, you can see now 5 is coming. Now अब हमें क्या करना है, VLOOKUP को इस मैच फंक्शन के साथ जोड़ना है। अब VLOOKUP क्या करेगा, इंटरसेक्शन काम करेगा। जब भी हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब है दो लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दो लुकअप वैल्यू है, एक फर्स्ट इज May, सेकंड इज प्रोडक्ट 4।
yes, this sheet is not available with you. ये बेसिकली मैंने आप ये वाला एग्जांपल जो है आप ट्राई कर सकते हैं इस वाले एग्जांपल के साथ। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इंटरसेक्शन, आप इस वाले एग्जांपल को इसमें ट्राई कर सकते हैं, और ये वाली शीट मैं आपको सुमित जी को दोबारा भेज भी दूंगा। नाउ अब बात करते हैं वीलुकअप की। वीलुकअप सर ये वाली शीट मैंने थोड़ी सी ऐड करी है बाद में, थोड़ा सा वीलुकअप को और मॉडिफाई करने के लिए जी। लुकअप वैल्यू इज दिस वन। नाउ लुकअप टेबल अरे, टेबल अरे आप देखेंगे आपका टेबल अरे ये रहा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आने वाली है कॉलम इंडेक्स को लेके। जब भी हम बात कर रहे हैं मे की, नाउ कॉलम इंडेक्स नंबर वुड बी इन केस ऑफ मे, कॉलम इंडेक्स नंबर वन वुड बी 1 2 3 4 5 6 number would be there. Now if I am talking about March, so column number 1 2 3 4 fourth number column would be there. Now how we will deal with this situation? We need to simply use what? Match function. See, match function क्या करेगा? Again position find कर लेगा, तो position के बेस पे हम इस VLOOKUP को एज ए इंटरसेक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू आपकी है ये रही, कॉमा लुकअप एरे ये रहा, लॉक। मैं एक काम करता हूं, इस वाले मैच फंक्शन को थोड़ा देख के लिए भी सिंपल इससे लिंक कर देता हूं। मैं आपको दोबारा से करता हूं ये वाला फंक्शन, आपको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देता हूं। लुकअप वैल्यू इज दिस वन, लॉक टेबल अरे इज दिस वन। आप कॉलम इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं मे के केस में, तो मे के केस में आपको 1 2 3 4 5 6 मुझे क्या करना पड़ेगा? मैच फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। एवरी टाइम मुझे मैच फंक्शन के साथ +1 करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे इसको कॉमा लगा के 0 करना पड़ेगा फॉर एग्जैक्ट मैच फॉर वीलुकअप। नाउ एंटर एंड यू कैन सी 157 इज कमिंग, बट मैंने क्या किया है? मैच फंक्शन को डिफरेंट सेल में यूज किया है इस बार। अभी मैं इस मैच फंक्शन को इस फॉर्मूले के साथ दोबारा कॉन्कैटिनेट करूंगा। मैं यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, माय शीट इज लिटिल बिट हैंग। नाउ अगर मैं इसको प्रोडक्ट 5 कर दूं और यहाँ पे फरवरी कर दूं, आप देखेंगे प्रोडक्ट 5 एंड फरवरी, नाउ इट इज फाइंडिंग इंटरसेक्शन एंड फरवरी इज ऑन द सेकंड पोजीशन। Any question till yet regarding match? No? सर हमने यहाँ पे add 1 क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसमें add 1 नहीं करेंगे, मैं सिंपल VLOOKUP ट्राई करता हूँ। VLOOKUP लुकअप वैल्यू इज दिस वन, टेबल अरे डेटा को सेट कर लिया, कॉमा अगर मैं यहाँ पे फरवरी की बात कर रहा हूँ 1 2 3, फरवरी इज ऑन द थर्ड पोजीशन, बट मैच फंक्शन इज टेलिंग मी व्हाट? 2 number. So what I need to do? I need to add 1 in it to make it 3, comma 0. This shall I move on? Yes, Vikram ji, yes. Okay. Sorry. Yes. Shall I repeat this? No. Yes, you can move on. Okay. So अब मैं क्या करूंगा? इस मैच फंक्शन को इसके साथ कॉन्कैटिनेट करूंगा। अगर आप सिंपल डायरेक्ट फंक्शन में एंटर करने के लिए सिंपल फंक्शन, अगर आप सिंपल मैच एंटर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस आता आएगा। अगर आप मैच फंक्शन को मैनुअली एंटर करना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक और ट्रिक है मेरे पास। हम एक अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं जिससे हम मैच फंक्शन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सर एक दो लोग कह रहे हैं रिपीट करने के लिए, मुझे थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं आपको बता देता हूँ सर दोबारा। VLOOKUP लुकअप वैल्यू इज आपकी प्रोडक्ट 5 है। आप टेबल अरे की बात कर रहे हैं, टेबल अरे आपका पूरा का पूरा डेटा है। जब आप बात कर रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर की, कॉलम इंडेक्स नंबर के साथ ही प्रॉब्लम है सर। कॉलम इंडेक्स नंबर के साथ प्रॉब्लम क्या है? कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे फिक्स नहीं है। जब भी जनवरी की बात करूंगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, फरवरी के केस में 3 है, एंड सो ऑन। ना अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा फरवरी है, तो मेरा मैच फंक्शन क्या कर रहा है? मेरे को 2 आंसर दे रहा है, जबकि मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पे 1 2 और 3 कॉलम नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? सिंपली ऐड 1 कर दूंगा एंड कॉलम फॉर एग्जैक्ट मैच आई विल एंटर 0 इन।
सो ये है आपका VLOOKUP प्लस मैच। नाउ एंटर कर देंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 551 आ रहा है, तो यहाँ पे 551 प्रोडक्ट फरवरी एंड प्रोडक्ट 5, अगर मैं सिमिलरली मंथ चेंज कर दूंगा लेट्स से जून, सो आप देखेंगे यहाँ पे 433 आ रहा है, आपका ये ऑटोमेटिकली डायनामिक चेंज होगा। नाउ अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस मैच फंक्शन को अलग से ना लिखने की बजाय, इस हेल्पर कॉलम को ना लेने की बजाय, मैं इस मैच फंक्शन को इसी सेल में डालना चाहता हूँ। अपने पुराने मेथड की बजाय ना, पुराने मेथड को ना यूज करते हुए मैं अपने नए मेथड को ट्राई करना चाहता हूँ। अब अगर आप सबने 6ठी से 8वीं क्लास में पढ़ी होगी अलजेब्रिक इक्वेशन, में उसी चीज का यूज करूंगा यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल सा, मैं आपको एक सिंपल चीज ट्राई करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे N5 सेल है और N5 सेल के अंदर कुछ फॉर्मूला है, तो आप देखेंगे मैं इस फॉर्मूले को ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे। N5, मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ और मेरा N5 सेल के अंदर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसका नाम है मैच। मैं क्या करूंगा, अब आप देखेंगे यहाँ पे भी N5 लिखा हुआ है, मैं इस N5 को रिप्लेस कर दूंगा फॉर्मूले के साथ, तो मेरा मैच फंक्शन यहाँ पे एंटर हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, मेरा N5 इस पूरे सेंटेंस के बराबर है, मैं इस सिंपल मैच को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे N5 को मैंने रिप्लेस कर दिया इसके साथ। तो आप देखेंगे अब आप इस सेल से लिंक होने की बजाय आपका डेटा इस वाले रो से लिंक हो गया, तो अब मेरा मैच फंक्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली एंटर हो गया। तो आपको अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज करते हुए ऐसे भी आप रिप्लेस कर सकते हैं फॉर्मुलेज को, आप मल्टीपल फॉर्मुले यूज कर सकते हैं, आप एक सेल में 10 फॉर्मुले यूज करें, 20 फॉर्मुले यूज करें, तो इस तरह से अलजेब्रिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल N5 में जो भी लिखा हुआ है उसको आपने अलग कॉपी कर लेना है, उसको एज ए एडिट मोड में कॉपी करते हुए कॉपी कर लिया। नाउ यहाँ पे जो N5 लिखा हुआ है, क्योंकि N5 सेल में है तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, डिलीट एंड पेस्ट। नाउ आप देखेंगे VLOOKUP प्लस मैच आपका इंटरसेक्शन VLOOKUP बन गया। अब आप कोई भी मन चेंज कीजिए, कोई प्रोडक्ट चेंज कीजिए, तो आपका हमेशा इंटरसेक्शन की तरह काम करेगा। सर एनी डाउट? ओके, yes, you are right, you can start from A2. now इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं, प्लीज क्लिक फॉर्मूला। सर हियर इज माय फॉर्मूला। मैं इसको एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके और पेस्ट कर देता हूँ, आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। सर N5 में मैंने कुछ नहीं किया सर, कॉपी करके यहाँ पे इस पूरे के पूरे N5 को उठा के मैंने यहाँ पे जो N5 था उसको रिप्लेस कर दिया और एज ए पेस्ट कर दिया। अब आगे चलते हैं सर। ओके, नाउ अब बात करते हैं सर VLOOKUP की। अब आप बात करेंगे सर, मैंने जब इसी एग्जांपल के साथ बात की थी तो मेरा सीरियल नंबर, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट HSN, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, स्टेट आ रहा था, और आप देखेंगे मेरा जो रॉ डेटा है और जो लुकअप डेटा है बिल्कुल सेम कॉलम है। नाउ हो सकता है जब आपका क्लाइंट डेटा दे और आपके पास किसी कलीग से डेटा आए तो कॉलम नंबर आपके चेंज हो सकते हैं, तो आपके कॉलम नंबर इस बार चेंज हो गए। कॉलम का जो सीक्वेंस था वो आपका सेम नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ ये कॉलम सारे, कॉपी और पेस्ट। तो कुछ कॉलम आपके थोड़े से अल्टर हैं, प्रोडक्ट की जगह आपका प्रोडक्ट कोड आ गया, यहाँ पे HSN आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गया, स्टेट आ गया, क्वांटिटी आ गया, तो आपके प्रोडक्ट चेंज है, कॉलम चेंज है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और अब हमें VLOOKUP लगाना है और इन कॉलम का रेफरेंस लेते हुए VLOOKUP लगाना है, बट आपकी एक ही प्रॉब्लम है, VLOOKUP हमेशा लेफ्ट से राइट काम करता है, तो मैं इन जो भी आपके राइट वाले कॉलम्स हैं मैं उनकी वैल्यू तो ढूंढ सकता हूँ VLOOKUP से, बट जो आपके लेफ्ट वाले कॉलम्स हैं मैं उनकी वैल्यू नहीं ढूंढ सकता VLOOKUP से। उनके लिए आपको, अगर आप Office 365 यूज कर रहे हैं तो आपको XLOOKUP ट्राई कर सकते हैं, अगर आप Office 365 यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इंडेक्स एंड मैच यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कट पेस्ट करके इस कॉलम को यहाँ ला सकते हैं। बट कभी कभार क्या होता है, जब हम सॉफ्टवेयर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो जो डेटा होता है ना आपका, वो आपको अल्टर करने के लिए मना कर देता है। जब जैसे कि आप TDS की रिटर्न की बात करें
या टीडीएस रिटर्न की जब आप डेटा भर रहे होते हैं तो उसमें हमेशा वो कॉलम मना कर देता है, आप अल्टर कर देते हैं तो आपकी वो शीट करप्ट हो जाती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अब मुझे डेटा को यहाँ पे लाना है, मैं क्या करूंगा, अगेन मैं मैच का यूज करूंगा, मैच। ना मुझे अब ये चेक करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट कोड है वो कौन से नंबर पे है। तो प्रोडक्ट कोड मेरा यहाँ पे आप देखेंगे मेरा लेफ्ट साइड में है, तो प्रोडक्ट कोड पे काम करेगा ही नहीं मेरा मैच। हाँ, वी लुकअप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वी लुकअप को थोड़ा सा एडवांस लेके जाना पड़ेगा। अब मुझे बात करनी पड़ेगी इंडेक्स की। अगर मैं ऑफिस 365 यूज नहीं कर रहा, तो अगर मैं ऑफिस 365 यूज कर रहा हूँ तो मैं एक्स लुकअप से भी ट्राई कर सकता हूँ। एक्स लुकअप आपको दूसरे फैकल्टी पढ़ाएंगे, तो मैं आपको इंडेक्स एंड मैच बताने वाला हूँ। अब इंडेक्स एंड मैच एक बार दोबारा से यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैच फंक्शन ने आपकी जो बात की थी वो बात की थी पोजीशन की। नाउ इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन आपको बताता है उस पोजीशन पे वैल्यू लिखी क्या है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, जून। तो अगर मैं इसी को इंडेक्स से बात करूं, इंडेक्स, सो एरे इज अगेन रेंज। सो आपका एरे है ये रहा, लॉकेट, सॉरी यहां से मैंने सेट किया था तो यहीं से करूंगा आपकी। नाउ कॉमा, नाउ अगर आपका डेटा वर्टिकल फॉर्म में है, अगर आपका डेटा वर्टिकल फॉर्म में है तो आपको रो नंबर एंटर करनी है। अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो आपको कॉलम नंबर एंटर करना है। तो मेरा आप देखेंगे मेरा डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे कॉलम नंबर एंटर करूंगा, अरे अरे इज दिस रेंज लॉग comma row number. I need to skip it because my data is in horizontal form. Now column number is 6 and you can see इस पोजीशन के बेस पे ये इंडेक्स फंक्शन जो है आपका वैल्यू को फाइंड कर रहा है। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, लेट से मैं यहाँ पे मार्च कर दूं, तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाती है मार्च। इसी चीज को हम यूज करते हुए यहाँ पे ये वी लुकअप को हटाते हुए यहाँ पे इंडेक्स एंड मैच लगाएंगे। अब आपका इंडेक्स एंड मैच आपका किसी भी फॉर्म में काम कर सकता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू डाउन एंड बॉटम टू टॉप। आप इंडेक्स एंड मैच कैसे भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलूंगा प्रोडक्ट कोड के साथ। तो आप बात कर रहे हैं प्रोडक्ट कोड की, मैं यहाँ पे बात करूंगा मैच की, मैच एंड लुकअप वैल्यू इज दिस प्रोडक्ट कोड, कॉमा लुकअप array is this one log, now comma 0 for exact match। आप देखेंगे मेरा प्रोडक्ट कोड जो है वो सेकंड नंबर पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कोड सेकंड नंबर पे। इसी तरीके से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो मेरा HSN 4 नंबर पे है, टैक्सेबल वैल्यू 6 नंबर पे है, स्टेट 7 नंबर पे है। ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आपका इंडेक्स एंड मैच तो है ही, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन भी है। इंटरसेक्शन किस लिए है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी ढूंढनी है और ये वाली वैल्यू भी ढूंढनी है, दो वैल्यू ढूंढनी है मुझे। आपको समझ में आ रहा है कि एग्जाम्पल इंटरसेक्शन क्यों है? ओके, सो बात करते हैं इस वाली वैल्यू की, इस वाली वैल्यू को भी ढूंढ लेते हैं एक बार मैच से। मैच, सो मैच लुकअप वैल्यू इज, आपका लुकअप वैल्यू ये रहा, कॉमा लुकअप एरे इज दिस वन। आप इसको लॉक कर देंगे, सॉरी यहाँ पे लुकअप आप देखेंगे तो मैंने इस तरह से लॉक कर दिया, कॉमा 0। आप देखेंगे मैच ने इसकी वैल्यू ढूंढ ली, ये वाली वैल्यू जो है आपकी, ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका 67 पोजीशन पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोल F V, यहाँ पे आप देखेंगे 67 पोजीशन पे है। आपके ऊपर 2 रो खाली हैं, 1 and 2, तो ये 67 पोजीशन पे है। इतना सर क्लियर है आपको? मैच फंक्शन कुछ नहीं किया सर, मैच फंक्शन क्या है, बस पोजीशन ढूंढनी है। एनी डाउट इन मैच फंक्शन? शुड वी मूव ऑन? ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा लगाने वाले हैं यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन। एंड आप देख रहे हैं इंडेक्स के साथ यहाँ पे दोनों चीजें हैं। यहाँ पे आपके साथ ये डेटा आपका वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। नाउ मुझे यहाँ पे इंडेक्स में दोनों चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, इंडेक्स एंड एरे इज, अगर मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट कोड की, सो प्रोडक्ट कोड, आप इसको डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे,
इस तरह से लॉक कर लेंगे। नाउ कॉमा रो नंबर। नाउ आपका कौन सा डेटा ऐसा है जो आपका वर्टिकल फॉर्म में है, मेरे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वर्टिकल फॉर्म में है, तो आप देखेंगे मेरे प्रोडक्ट का मतलब है 67 पोजीशन। नाउ कॉमा नाउ कौन सा डेटा आपका ऐसा है जो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ये आपके जो हेडर्स हैं ये आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे इस 2 नंबर को चूज कर लूंगा। आप देखेंगे एंटर एंड प्रोडक्ट कोड है C1303। लेट्स जस्ट फाइंड इट। सॉरी, इसने एक वैल्यू ऊपर की ढूंढी है, मैं तो कुछ गलती करी है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जब मैच फंक्शन एंटर किया था, यहाँ पे मैंने हेडर को स्किप किया था और यहाँ पे मैंने हेडर ले लिया है मिस्टेकनली, तो मुझे यहाँ पे हेडर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने मैच फंक्शन में हेडर ले लिया है तो मुझे हमेशा सेम रेंज रखनी पड़ती है। जब भी आप सम में या काउंटिंग पे ट्राई करते हैं हमेशा आप सेम रेंज रखते हैं, तो मुझे हेडर को यहाँ छोड़ना पड़ेगा A3 एंड एंटर, एंड यू कैन सी द आंसर इज C1833। नाउ मुझे क्या करना है, इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आप देखेंगे आपकी वैल्यू चेंज हो गई। सर आपको इंडेक्स समझ में आया, इंडेक्स किस तरह से काम करता है? अभी हम थोड़ा सा और ऐड करने वाले हैं। एनी क्वेश्चन? शैल आई रिपीट दिस? ओके, मैं एक बार दोबारा बात करता हूं सर इंडेक्स की। सर इंडेक्स क्या कर रहा है, इंडेक्स आपके मैच फंक्शन की पोजीशन के बेस पे आपकी वैल्यू को लेके आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं इंडेक्स की, तो यहाँ पे ये मुझे कह रहा है प्लीज एंटर योर एरे फर्स्ट। सो नाउ मैं एंटर कर लेता हूँ अपनी एरे, डेटा को सेट कर लेता हूँ पूरा का पूरा। नाउ डेटा को सेट कर लिया। नाउ अब ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी चीज आपकी वर्टिकल फॉर्म में है, आई मीन्स प्रोडक्ट इज इन वर्टिकल फॉर्म, तो आपको क्या करना है, उसे एंटर करना है रो नंबर में, और जो भी चीज आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है उसे आपको एंटर करना है कॉलम नंबर में। तो आपके प्रोडक्ट जो भी हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक हेडर चूज करनी है, इसको मैं हेडर को इग्नोर कर देता हूँ, A3 से G10129, तो आप देखेंगे मैंने हेडर छोड़ दी है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो आपको उसे लेना है कॉलम नंबर में, और जो भी वर्टिकल फॉर्म में है उसे आपको लेना है रो नंबर में। तो मेरा डेटा वर्टिकल फॉर्म में जो प्रोडक्ट है, तो मैं प्रोडक्ट की जगह यहाँ पे नंबर कर दूंगा, नंबर्स, यहाँ पे नंबर ले लिया, और कॉलम नंबर जो मेरा है यहाँ पे ये रहा, एंड एंटर। आप देखेंगे यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई C833। अब सर क्लियर है? ओके, अब हमें करना क्या है, अगेन अगर आप चाहें तो यहाँ से ये हेल्पर सेल्स हटा सकते हैं। सर 67 इसलिए लिया है क्योंकि इस प्रोडक्ट की जो ये प्रोडक्ट है यहाँ पे आपका 67 पोजीशन पे है। नाउ अब मुझे करना क्या है, इस मैच फंक्शन को वापस इंसर्ट करना है इस इंडेक्स फंक्शन में। तो मैं यहाँ से इन दोनों वैल्यू को हटा दूंगा और मैच फंक्शन को ले आऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे P17 किसी सेल से लिंक है और L15 किसी सेल से लिंक है। नाउ मैं P17 की वैल्यू कॉपी कर रहा हूँ, P17 की कुछ कंटेंट लिखा हुआ है मैं कॉपी कर लेता हूँ और P17 में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। P17 को हटा दिया मैंने एंड पेस्ट कर दिया एंड एंटर। एंड यहाँ से सिमिलरली मैंने दूसरा सेल जो मेरा है L15 है, तो मैं L15 की वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ, L15 की ये कॉपी कर ली। तो अब मुझे किसी भी हेल्पर सेल्स की भी जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे L15 की जगह पेस्ट भी कर दिया। अब आप देखेंगे मेरा फाइनल जो रिजल्ट है मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ। आप एंटर कर लेंगे और आप देखेंगे आपका अब जो डेटा है वो डायनामिक हो गया है। अब मुझे यहाँ पे सिंपल थोड़ी सी चेंजेस करने हैं। इस केस जो 7 है में मुझे कॉलम को लॉक कर देना है और यहाँ पे मुझे रो को लॉक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा हमेशा जो रो है वो ये वाली चलेगी और कॉलम है वो हमेशा ये वाला चलेगा। अब मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। आप देखेंगे तो मेरा बिना हेल्पर सेल्स के भी
ये मैच फंक्शन काम कर रहा है। और अगर मैं इसी चीज को कॉपी करूंगा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो आप देखेंगे क्वांटिटी भी मेरी आ गई जो कि टोटली डायनामिक। अब मेरे रॉ डेटा में कोई कुछ भी चेंज करे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। नाउ वी आर टोटली डिपेंड ऑन फुल्ली ऑटोमेशन। तो आप कितना टाइम इस चीज से सेव कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा टिपिकल है बट प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सर मैं मैच के बारे में बताया था, मैच फंक्शन क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन ढूंढता है। लेट्स से मैं दोबारा यहाँ पे एक बार मैच फंक्शन ट्राई करने वाला हूँ। मैच लुकअप वैल्यू इज योर सीरियल नंबर। तो ये सीरियल नंबर यहाँ पे जो है आपके रॉ डेटा में किस पोजीशन पर है ये बताता है मैच फंक्शन। तो सीरियल नंबर इज ऑन द वर्ड वन पोजीशन एंड 0 एंड एंटर, यू कैन सी 1। सर डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो हमेशा पहली वैल्यू उठाएगा। वीलुकअप भी आपका वही करता है। आपके जितने भी लुकअप फंक्शन है, अगर मैं लुकअप फंक्शन की काउंटिंग की बात करूं तो मुझे प्लीज कोई बता सकता है कि आपके पास कितने लुकअप फंक्शन है एक्सेल के अंदर? कोई नाम बता सकता है लुकअप्स के? मैं आपको बता देता हूं। सर अगर आपको सारी डुप्लीकेट वैल्यू को ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल यूज समेफ एंड काउंटफ। मैं आपको बता देता हूं देयर आर 5 टाइप ऑफ लुकअप्स। फर्स्ट इज VLOOKUP, सेकंड इज HLOOKUP, थर्ड इज XLOOKUP, फोर्थ इज इंडेक्स एंड मैच, फिफ्थ इज ओनली लुकअप। सो हियर वी हैव 5 लुकअप्स इन एक्सेल। नाउ अपने इंडेक्स एंड मैच के सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। ये आप सभी को साथ देना है। इसमें मेरे पास क्या है, थोड़ा सा हम टेंडरिंग की बात कर रहे हैं। नाउ सपोज वी आर मेकिंग गवर्नमेंट टेंडर। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट टेंडर की, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट 1 के लिए मेरे पास 5 वेंडर्स ने कोट किया हुआ है। 5 वेंडर्स ने जो भी मिनिमम प्राइस होगा मैं उस वेंडर को ऑप्ट कर लूंगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मिनिमम प्राइस को बताना है, किसने व्हाट इज द मिनिमम प्राइस एंड व्हाट इज द वेंडर नेम ऑफरिंग दैट प्राइस। क्वेश्चन क्लियर? आपको करना क्या है, एक वेंडर को सेलेक्ट करना है हर प्रोडक्ट के जो कि मिनिमम प्राइस आपको ऑफर कर रहा है और उस वेंडर का नाम यहाँ पे लाना है। नाउ हम क्या कर सकते हैं, अब आपको सिंस यहाँ पे मिनिमम प्राइस निकालना है तो आप यहाँ पे इंडेक्स एंड मैच यूज कर सकते हैं, VLOOKUP यूज कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले मिनिमम प्राइस निकाल लेता हूँ। तो मिनिमम प्राइस निकालने के लिए आपके पास मैक्स एंड मिन फंक्शन है। मिन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू निकालता है सारी वैल्यूज के बीच में, एंड मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालता है। तो अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है आप क्या कर सकते हैं, डेटा को सेट कर सकते हैं इस तरह से एंड एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इन सब में जो मिनिमम वैल्यू है आपकी वो है 106। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है सबसे मिनिमम जो है 106 है इस प्रोडक्ट का। लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप एंड यू कैन सी हर प्रोडक्ट का हमने मिनिमम प्राइस निकाल लिया है इजीली। यहां तक किसी को कोई डाउट? शैल वी मूव ऑन? ओके, नाउ अब हमें बात करनी है वेंडर्स की। अब आपको सर बताना है कि ये जो 106 है कौन सा वेंडर ऐसा है जो मुझे ऑफर कर रहा है 106। तो अगर मैं बात कर रहा हूं मैच फंक्शन की, मैच lookup value is no this one and lookup array is this one and match type is 0। तो आपको ये पता लग जाएगा इस मैच फंक्शन से ये जो 106 है ये कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो आप उसके बेस पे आपके वेंडर्स नेम निकाल सकते हैं यूजिंग इंडेक्स। आपको समझ में आया? ओके मैं एक बार रिपीट करता हूँ ये वाला चीज। हमें क्या करना है, यहाँ पे वेंडर्स का नाम निकालना है। आप देखेंगे वेंडर का नाम थोड़ा सा टिपिकल है निकालना, यहाँ पे हम इंडेक्स एंड मैच यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैच फंक्शन से हम पहले क्या करेंगे, प्राइस की पोजीशन को निकाल लेंगे। ये वाला जो प्राइस है आपका 106, ये किस पोजीशन पे आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड वेंडर वी नीड टू चूज हियर। सो आप क्या करेंगे, मैच फंक्शन यूज कर लेंगे फॉर फाइंडिंग द पोजीशन। लुकअप वैल्यू इज दिस वन, comma lookup array lookup value is this one, locket, comma 0। so this price is on the second position and if we will drag and drop
and you can see we don't need to lock this because we need to drag and drop just here. Now आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला जो प्राइस है आपका थर्ड पोजीशन पे है, ये वाला जो प्राइस है आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, एंड ये वाला प्राइस आपका थर्ड पोजीशन पे है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग इंडेक्स इस पोजीशन के वेंडर्स का नाम भी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे अब आपका डेटा जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, तो मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर में आपका जो मैच फंक्शन है वो एंटर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अब सिंपल डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ इंडेक्स। तो एरे जो है मुझे अब की बार नाम निकालना है वेंडर्स का, तो मेरा ये आपका जो डेटा है रेंज है वो ये रही array. Now comma I need to skip this row number because my data is in horizontal form, not in vertical form. Now skip this, press comma and column number. This whole match function is your column number. अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट सेल में एंटर करके उसकी वैल्यू को पेस्ट कर रहे थे। अब की बार हम सिंपल मैच फंक्शन यूज कर रहे हैं एंड क्लोज कर देंगे अपनी ब्रैकेट को एंड एंटर, एंड यू कैन सी vendor 2 is offering the minimum price. Have you got the solution? Should I repeat this? Okay. मैंने सर क्या किया है, मैं दोबारा एक बार कंट्रोल सी दबा देता हूं। मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस पोजीशन के बेस पे वेंडर्स की नाम निकाले हैं। एक ही फंक्शन एक्सेल में ऐसा है जो पोजीशन के बेस पे एक्चुअल वैल्यू ढूंढ सकता है, वो आपका है इंडेक्स। तो आप इंडेक्स को यूज करेंगे। इंडेक्स क्या करता है, इस जो 6 आपका आंसर आया, जो सेकंड आपका यहाँ पे सेकंड आंसर आ रहा है, आप सेकंड आंसर के बेस पे आपका नाम निकालेगा इंडेक्स। सो इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स। सो एरे मींस अगेन रेंज। रेंज आपको सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे ये रही, क्योंकि मेरे वेंडर के नेम ढूंढने हैं तो मुझे हमेशा वेंडर के नेम ढूंढने पड़ेंगे। एंड मैंने यहाँ पे इतनी रेंज सिलेक्ट की है B4 से लेकर F4 तक, तो मैं सिमिलरली इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेंज यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। नाउ कॉमा, क्योंकि मेरा डेटा आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो मुझे कॉलम नंबर एंटर करने पड़ेंगे, रो नंबर को मुझे स्किप करना पड़ेगा। मेरा डेटा इंटरसेक्शन का एग्जांपल नहीं है, तो मुझे रो नंबर को स्किप करना ही पड़ेगा। नाउ कॉमा एंड एंटर, एंड यू कैन सी वेंडर 2 इज ऑफरिंग मिनिमम प्राइस। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे बस आपको ये B3 और F3 को लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये हर बार यही चेक करना है। मुझे यहाँ पे इस B3 और F3 को लॉक करना पड़ेगा। आपके पास दो तरीके लॉक करने के, आप क्या कर सकते हैं, एक ही सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस एंड F4 कर सकते हैं। यहाँ पे F4, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, सॉरी, आप जो ये कॉलम दिख रहा है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे तो आपके दोनों जो सेल्स हैं वो दोनों लॉक हो जाएंगे। तो एंटर कर देंगे। अब आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, और आप देखेंगे आपके सारे वेंडर्स आ गए जो मिनिमम प्राइस आपको ऑफर कर रहे हैं। थोड़ा सा एग्जांपल टिपिकल है सर, बट इंडेक्स एंड मैच आपको, अगर आपको प्रैक्टिस में है या प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफी इजी है। बहुत टाइम बचाने वाले फंक्शन है सर दोनों। एनी क्वेश्चन इन इंडेक्स एंड मैच? ओके, आगे चलते हैं सर, अपने सिंपल से छोटे से नए फंक्शन को ट्राई करते हैं, ईओ मंथ। हैव यू एवर ट्राइड ईओ मंथ बिफोर? एनीवन? किसी ने ईओ मंथ कभी ट्राई किया है? ओके सर, ईओ मंथ क्या करता है, ईओ मंथ आपकी मंथ जो मंथ है उसकी लास्ट डेट निकालता है। अगर मैं बात करूं, लेट से मुझे इस मंथ, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेट लिखी है 8 अक्टूबर 2021। अगर मुझे इस मंथ की लास्ट डेट चाहिए, दैट इज 31 अक्टूबर 2021, तो मैं उसको कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे वो निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा ईओ मंथ, एंड स्टार्ट डेट इज दिस वन, कॉमा, आपको जब भी मंथ की लास्ट डेट निकालनी है तो आप क्या एंटर करेंगे, 0। तो अब मैं इसको यहाँ पे ये नंबर दिखा रहा है, मुझे यहाँ पे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट डेट, एंड आप देखेंगे यहाँ पे डेट आ रही है 8 अक्टूबर की जगह 31 अक्टूबर। नाउ अगर आप 0 की जगह 1 एंटर करेंगे तो 1 का मतलब है आप अब अक्टूबर की लास्ट डेट नहीं चाहते, उससे नेक्स्ट मंथ की आप लास्ट डेट चाहते हैं, दैट इज 30 नवंबर। अगर आप 2 एंटर कर लेंगे तो अब आपको डेट दिखाएगा 31 दिसंबर। सो अब इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव नंबर एंटर करते हैं, लेट्स से -1,
तो अब आपको पहले वाले महीने की लास्ट डेट दिखाएगा, डेट इज 30 सितंबर। हियर इट इज। अब हम बात करते हैं अपने वाले एग्जांपल की। हमारे पास लेट से ईएसआई पीएफ का डेटा आया क्लाइंट से, और यहाँ पे हमारे पास ये मंथ लिखे हुए हैं। हमें डिपॉजिट डेट यहाँ पे है, हमारे क्लाइंट ने ये जो आपका ईएसआई है लेट से या एपीएफ है, आपका इस डेट को जमा कराया हुआ है। आपको निकालना है ड्यू डेट्स एंड कौन सा आपका ऐसा चलान है जो लेट जमा हुआ है, या कौन सा ऐसा चलान है जो टाइम पे जमा हुआ है। सो आपको टैक्स ऑडिट में आपको डेट डालनी पड़ती है, ड्यू डेट्स। सो आप फटाफट निकाल सकते हैं ड्यू डेट्स। आपकी कितनी भी डेट्स हो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डाटा बड़ा है टिल 100 रो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट्स निकालनी है। ड्यू डेट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी ड्यू डेट निकालने के लिए इसमें 15 दिन जोड़ने पड़ेंगे। सिमिलरली मुझे इसमें 15 दिन जोड़ने पड़ेंगे, इसमें 15 दिन जोड़ने पड़ेंगे। आप निकाल सकते हैं ऐसे भी। अगर आप ईओ मंथ जानते हैं, अगर आपकी डेट अभी तो मेरी फिक्स है, अगर ये कोई 1 सितंबर होती या 23 जुलाई होती तो मुझे क्या करना पड़ता, तब मुझे उस केस में ईओ मंथ ही यूज करना पड़ता। तो मैं बात कर लेता हूँ एक बार ईओ मंथ की। ईओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ द मंथ। सो ईओ मंथ एंड स्टार्ट डेट इज दिस। तो जब भी मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये मेरा हमेशा एंड ऑफ द मंथ निकालेगा। अगर आपका ये लेट से मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ इस एग्जांपल को, आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। मैं कॉपी पेस्ट रिप्लेस कर देता हूँ फॉर्मूले को। यहाँ पे मैं इसको 1 सितंबर कर देता हूँ और यहाँ पे इसी एग्जांपल को 23 कर देता हूँ। ओके, नाउ मुझे क्या करनी है, इसकी ड्यू डेट्स निकालनी है। अगर मैं बात करूँ ईओ मंथ की, स्टार्ट डेट इज दिस वन। अब मुझे ड्यू डेट निकालनी है। मुझे पता है कि जो आपका ईएसआई जमा होना होता है वो आपके अगले 15 दिन तक जमा होना होता है। तो मैं इसकी पहले लास्ट डेट निकाल लूंगा मंथ की, क्योंकि मुझे हमेशा लास्ट डेट में ही 15 दिन जोड़ने पड़ेंगे। तो मैंने लास्ट डेट निकाल ली, तो आप देखेंगे 30 सितंबर आ गया। मैं इसको अगेन शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे 30 सितंबर आ गया। अगर मैं इसको 15 दिन जोड़ दूंगा तो अब मैं इस इन डेट पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। अब ये डेट कोई भी हुए तो मुझे सिंपल एंड ऑफ द मंथ निकाल लेना है और उसमें 15 दिन जोड़ते सॉरी जैसे ही आपने इसमें 15 दिन जोड़े तो आपका ये ड्यू डेट निकाल के दे देगा, डेट इज 15 अक्टूबर एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। आप देखेंगे सबकी ड्यू डेट आपकी आ गई। तो आपको मैनुअली एंटर करने की बजाय आपको इस तरह से आप ड्यू डेट निकाल सकते हैं और आप टैक्स में फिल कर सकते हैं। सर आपको ईओ मंथ समझ में आया? हमारे पास अभी एग्जांपल्स हैं ईओ मंथ में। एनी क्वेश्चन इन ईओ मंथ? ओके, नो क्वेश्चंस। नाउ क्लाइंट, ओके, क्लाइंट थोड़ा सा और समझदार है। क्लाइंट क्या करता है, अपने को ये मंथ के नाम लिख के दे देता है और डिपॉजिट डेट लिख के दे देता है। लेट्स से सितंबर की हमने जो ईएसआई जमा कराया वो जमा कराया 8 अक्टूबर को। नाउ हमें निकालनी है ड्यू डेट्स। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अब थोड़ा सा हेल्पर कॉलम की मदद लेनी पड़ेगी। मुझे इस जो मंथ के नाम लिखे हुए हैं, इस मंथ के नाम को मुझे मंथ के नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और नंबर्स के बेस पे मैं यहाँ पे ड्यू डेट निकाल लूंगा। मैं यहाँ, मेरे पास यहाँ पे ट्रिक है। इस नाम को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस नाम को 1 से कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, 1 एंड दिस वन। नाउ यहाँ पे ये आ गया 1 सितंबर। नाउ जब भी आप किसी नंबर को आप किसी के साथ कॉन्कैटिनेट करते हैं तो एक्सेल हमेशा उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों सेल्स की बात करें, अगर हम इसको हम जनरल कर देते हैं वापस, जनरल, तो आपके एक्सेल के अंदर जितने भी नंबर्स हैं आपके हमेशा राइट साइड आपके कॉलम में लिखे होते हैं, या आपके जितने भी टेक्स्ट हैं हमेशा आपके लेफ्ट साइड लिखे होते हैं। अगर आप किसी नंबर को, लेट्स से हियर वी हैव 1 एंड हियर वी हैव 1, नाउ यू कैन सी दिस नंबर इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये आपका नंबर नहीं है, टेक्स्ट है। अगर मैं इस पे सम फंक्शन ट्राई करूंगा तो आप देखेंगे मेरा आंसर 0 आ रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज टेक्स्ट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को जो कि टेक्स्ट है इसे मुझे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं डायरेक्टली 1 सितंबर एंटर करता
तो मेरा एक्सेल उसे कंसिडर कर लेता है डेट में। आप देखेंगे इसने डेट में कन्वर्ट कर दिया, बट जब मैंने इसे 1 से कॉन्कैटिनेट किया तो इसने इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे, मैं इसे वापस डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मुझे इस टेक्स्ट को वापस नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो उस सेल के अंदर 0 ऐड कर सकते हैं या फिर उस सेल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से। आपका कोई भी टेक्स्ट है जो आपका, लेट्स से अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा 0, जनरल में कन्वर्ट कर देता हूं वापस जनरल, एंड यू कैन सी दिस टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू अ नंबर। अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो या तो आप उसमें ऐड कर लें 0 या मल्टीप्लाई कर दें 1 से, तो आपका वो जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है which is convertible into a number will convert into a number. Now आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है 1 से या फिर ऐड कर देना है 0। नाउ अब देखेंगे जैसे ही मैंने इसको इसमें ऐड किया 0 तो इसने इस मंथ के नेम को एक डेट में कन्वर्ट कर दिया जो कि स्टार्टिंग डेट है मेरे मंथ की। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। अब आपको ड्यू डेट मैनुअली निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास 1000 रो हो या 10,000 रो हो, आपको ड्यू डेट आप तुरंत निकाल सकते हैं। सर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, बट आपका शॉर्टकट जो है इस वाले एग्जांपल पे काम नहीं करेगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एरर भी नहीं आ रही। सर जो इसने ईयर जो निकाला है ना, वो ईयर निकाला है इसने सिस्टम की डेट के बेस पे। आपकी जो सिस्टम की डेट है उसने ईयर के बेस पे निकाला हुआ। नाउ मैं इसे दोबारा से कन्वर्ट कर देता हूं +0। नाउ अब आपका यहाँ पे डेट आ गई। आप किसी भी मंथ को डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मंथ नेम को डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से, एंड ड्रैग एंड ड्रॉप एंड एंटर। यस सर आपके पास हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, अगर आप ईयर का इशू कर रहे हैं तो आप ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लें अलग से, तो आप उस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, क्योंकि मैंने एक्चुअली मेरे एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैंने आपको अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे जो मोटिव था वो ईओ मंथ समझाना नहीं था। यहाँ पे जो मेरा मोटिव था वो किसी मंथ के नेम को किसी मंथ में कन्वर्ट करने का एग्जांपल एक्चुअली मैंने लिया हुआ था यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे हो सकता है कि ड्यू डेट मेरी गलत आएंगी, बट ईओ मंथ से अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप इसकी ड्यू डेट निकालना चाहते हैं, अगर इसकी ड्यू डेट एक्चुअल में होनी चाहिए थी 21, बट इट विल शो मी 2022। Okay, now I will use EO month, and EO month start date is this one, comma, and month is 0 and +15। यहाँ पे ड्यू डेट जो निकालेगा ये आपकी जो ईयर लेगा वो ये वाला लेगा, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब आपका एक मिस्टर शमा चौधरी जी का क्वेश्चन है बेसिकली, यहाँ पे कंसर्न है कि आपका जो है डाटा प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये सितंबर का डेटा है, सितंबर का डेटा मैंने सितंबर 2021 का जो ESI है वो मैंने जमा करा है 8 अक्टूबर 2021 में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस ईयर को इस ईयर में चेंज करना पड़ेगा मुझे। मैं उसके लिए थोड़ी सी ट्रिक यूज करूंगा। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक पता हो एक्सेल का, तो एक्सेल में हमारे पास 3 फंक्शन है, डेट इज ईयर। ईयर क्या करता है, किसी डेट से ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेता है ऐसे, और इसे मैं वापस जनरल में कन्वर्ट कर देता हूँ जनरल। और मंथ फंक्शन क्या करता है, मंथ फंक्शन आपका मंथ को एक्सट्रैक्ट करता है, और डे फंक्शन क्या करता है, आपके डे को एक्सट्रैक्ट करता है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसका ईयर एक्सट्रैक्ट करके और वापस डे को बना दूंगा। तो अगर मुझे बात करनी है 2021 की, अगर मुझे ये वाला ईयर लेना है इस ईयर की बजाय, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे चूज कर सकता हूँ डेट फंक्शन, डेट। यहाँ पे मुझे ईयर चाहिए, ईयर मुझे इस डेट का निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ईयर यूज कर लूंगा, ईयर फंक्शन विल एक्सट्रैक्ट द ईयर ऑफ दिस डेट। नाउ कॉमा, नाउ मुझे मंथ निकालना है, क्योंकि मुझे मंथ ड्यू डेट चाहिए, तो मंथ मेरा इसका निकलेगा, तो मंथ
serial number is here, comma, and date. Once again I will choose this last date, and you can see मैंने इस ईयर से इस ईयर को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया. Now close the parentheses and enter, and you can see the due date would be this one. अब आपका प्रीवियस ईयर हो या आपका करंट ईयर हो तो आपका ऑटोमेटिकली ये ड्यू डेट निकाल देगा मंथ के नाम से. सर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं. मैंने क्या किया है, सिंपल 3 फंक्शन को कॉन्कैटिनेट किया है. मैंने यहाँ पे ईयर से ईयर निकाल लिया, मंथ से मंथ फंक्शन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, मंथ फंक्शन से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और डे फंक्शन से डे के नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लिया. अब मैंने क्या किया है, क्योंकि मुझे ईयर जो चाहिए ये वाला चाहिए, और जो मुझे मंथ और डे चाहिए वो ये वाले चाहिए ड्यू डेट बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे यही किया है. मैंने डेट फंक्शन का यूज करते हुए ईयर मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, और मंथ मैंने यहाँ से सेट कर लिया, और डे मैंने यहाँ से सेट कर लिया. तो आप देखेंगे मैंने पूरी की पूरी ड्यू डेट को चेंज कर दिया विद दिस ईयर. तो आप इस तरह से भी आपके ड्यू डेट बना सकते हैं. आपके मल्टीपल ईयर्स हो या आपका कैसा भी एग्जांपल हो, आप इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. आप देखेंगे 3-4 फंक्शन का यूज करते हुए मैंने एक एग्जाम्पल को कवर किया. एनी क्वेश्चन? ओके सर, यहाँ पे हम अगेन डेट्स की बात करने वाले हैं. अब मेरा यहाँ पे एक कंसर्न है, मुझे यहाँ पे किसी की एज निकालनी है. लेट्स से यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ. यहाँ पे एक कॉलम कम है. अब आपको करना क्या है, इस वाले एग्जांपल में आपको इन दोनों डेट्स का डिफरेंस निकालना है इन डे, मंथ एंड ईयर. सो यहाँ पे आपके कितने भी दिन हो सकते हैं, कितने ही मंथ हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, एंड ईयर कितने भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 साल है, तो यहाँ पे कंप्लीटली तो हमारे पास 2 साल है, तो यहाँ पे 2 आएगा. तो आपको अब जो 2 डेट्स का डिफरेंस निकालना है वो निकालना है डे, मंथ एंड ईयर में. यस, वी कैन यूज डेटेटिव. आपका डेटेटिव जो है वो एक्सेल में इनबिल्ट है, बट जब भी आप डेटेटिव की बात करते हैं, डेटेटिव आपका एक हिडन फंक्शन है. डेटेटिव की बात करूं तो अगर आप अभी तक आपको जितने भी मैंने फंक्शन यूज किए सबके साथ हेल्पर टिप्स मिलती थी, स्क्रीन टिप मिलती थी, बट यहाँ पे डेटेटिव के साथ आपके पास स्क्रीन टिप नहीं है. तो आप देखेंगे डेटेटिव, एंड जैसे ही मैं पूरा फंक्शन को लिख लूंगा और ओपन करूंगा ब्रैकेट, तो आप देखेंगे आपका डेटेटिव आ रहा है. अगेन इसने मेरे को आर्ग्यूमेंट के साथ स्क्रीन टिप नहीं दिया, तो अब की बार मुझे ये फंक्शन थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा. तो जब भी मैं बात करूंगा डेटेटिव की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो है आपकी ओल्ड डेट, कॉमा, न्यू डेट. नाउ आप एंटर कर सकते हैं डे, मंथ, ईयर, कंप्लीटेड number of months, ignoring years, completing months, ignoring days. This is YM and YD. Ignoring completing years and taking only remaining days. मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है इन तीनों चीजों का. लेट्स से मुझे यहाँ पे बात करनी है इस वाले YM की. अब मुझे लेट्स से YD की बात करते हैं. अगर मैं बात करूँ इन दो का डिफरेंस मुझे खाली डेट्स में निकालना है. मुझे पता है कि इन 2 डेट्स का डिफरेंस जो है, अगर मुझे खाली डेट्स में निकालना है, मैं सिंपल सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. तो आप देखेंगे इन दोनों डेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो एक्जैक्टली 1353, आप +1 भी करते हैं तो 1354 डेज का डिफरेंस है. तो अब अगर हम बात करें, मुझे क्या करना है, सिर्फ इस वाले साल की बात करनी है. यानी कि अगर मैं बात करूं इस वाले ईयर की, तो ये वाला जो साल है आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका 30 जनवरी 2022 में. ये वाली आपकी जो डेट है पूरी कंप्लीट हो जाएगी. तो अब मुझे करना क्या है, इन दो जो शुरू के 2 साल है मुझे उनको इग्नोर करना है, और मुझे यहाँ पे जो डिफरेंस निकालना है वो इस डेट से लेकर इस डेट का निकालना है. तो मुझे उसके लिए यूज करना पड़ेगा YD, मींस इग्नोर कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स एंड टेक ओनली रिमेनिंग डेज. अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेटेटिव की,
सर मैंने यहाँ पे ऐड डिफरेंस में ऐड वन इसलिए किया है, जब भी मैं डिफरेंस करता हूँ डेप्रिसिएशन के अंदर हम जनरली ऐड करते हैं वन, क्योंकि डेप्रिसिएशन में हम बात करते हैं कि यहाँ पे इस डेट को परचेज किया तो इस डेट का डेप्रिसिएशन भी निकलेगा, तो यहाँ पे हम इसलिए वन ऐड करते हैं। मैंने एग्जांपल यहाँ पे अपने डेप्रिसिएशन का लिया हुआ था, तो यहाँ पे आप ऐड वन इसलिए करते हैं उस डेट को। आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, बट आपकी जब आप इग्नोर कर देंगे तो आपकी ये वाली डेट जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वाले डेज लेना है तो आपको ऐड वन करना पड़ेगा, अगर आपको ये डे इग्नोर करना है तो आपको वन को हटाना पड़ेगा, इस तरह से। नाउ अगर हम बात करें इग्नोरिंग कंप्लीटेड ईयर्स एंड टेकिंग रिमेनिंग डेज, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं डेटेड इफ। अगेन मेरे पास स्क्रीन टेप नहीं है, मुझे रटना ही पड़ेगा। नो, ओपन द पैरेंथेसिस, ओल्ड डेट इज दिस वन, कॉमा, एंड टुडे इज दिस वन, कॉमा। नाउ मुझे एंटर करना पड़ेगा YD। नाउ यहाँ पे आपके पास जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को किसी भी फंक्शन के अंदर एंटर कर रहे हैं, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है सर, आपको वो टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स में एंटर करना है। मैं हमेशा कोई भी नंबर आप एंटर कर रहे हैं तो आपको डबल कोट्स की जरूरत नहीं है, बट आपको अगर आप कोई भी टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं तो आपको हमेशा डबल कोट्स की जरूरत है। क्लोज पैरेंथेसिस एंड एंटर। आप देखेंगे दिस टाइम यू हैव ओनली 257 डेज। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, दिस माइनस दिस, सो आप देखेंगे 257 डेज। सो YM का मतलब है इग्नोरिंग कंप्लीटेड ईयर्स एंड टेकिंग रिमेनिंग डेज। अगेन MD का मतलब है इग्नोरिंग कंप्लीटेड मंथ्स। तो यहाँ पे अगर मैं मंथ की बात करूंगा तो मेरा जो मंथ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 30 सितंबर 2022। तो यहाँ पे मेरे सारे मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये डिफरेंस निकालेगा मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो दिस इज कॉल्ड MD एंड YM मीन्स इग्नोरिंग कंप्लीटेड ईयर्स टेकिंग ओनली रिमेनिंग मंथ्स। नाउ अगर मैं बात करूं मुझे एज निकालनी है किसी की डे मंथ एंड ईयर में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डे निकाल लेता हूँ, डेटेड इफ। यहाँ पे जब भी आप डे निकाल रहे हैं इट मींस यू नीड टू इग्नोर द ईयर्स। आपको ईयर से कंसर्न नहीं है, सो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल माइनस। सर मुझे आपका थोड़ा सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपको थोड़ा सा एलिवेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इस वाले एग्जांपल को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आपका क्वेरी सॉल्व करता हूँ सर। नाउ बात करते हैं सर डेटेड इफ की। डेटेड इफ सर यहाँ पे आपको डे निकालने हैं, तो पहले ईयर की बात कर लें। तो यहाँ पे अगर मैं ईयर की बात करूँ, ईयर हमेशा जब भी आप डे मंथ और ईयर निकाल रहे हैं आप उल्टा चलेंगे, पहले आप बड़े स्केल पे निकालेंगे डेटेड इफ एंड ओल्ड डेट कॉमा न्यू डेट कॉमा एंड ईयर। बट डेटेड इफ की एक ही my mistake, I have not entered the correct name. Now डेटेड इफ की एक ही प्रॉब्लम है कि हमेशा जितने भी आपके फ्रैक्शंस होते हैं उसको इग्नोर कर देता है। तो अगर आपके इसमें कोई भी फ्रैक्शंस होंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें फ्रैक्शंस हैं, तो आपके उसको इग्नोर कर देता है डेटेड इफ। यहाँ पे आपके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पे इसने 3 निकाल लिए। अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे आपके 21 ईयर्स कंप्लीट है, यहाँ पे आपके 16 ईयर्स कंप्लीट है, यहाँ पे आपके 13 ईयर्स कंप्लीट है। तो इस तरह से ये आगे चल रहा है। अगर मैं बात करूँ मंथ्स की, इट मींस आपको रिमेनिंग मंथ निकालने हैं, इग्नोर करना है कंप्लीटेड ईयर्स को। तो बात कर डेटेड इफ, सो ओल्ड डेट माइनस सॉरी ओल्ड डेट कॉमा न्यू डेट कॉमा। अब मुझे इग्नोर करना है कंप्लीटेड ईयर्स को, मैं क्या यूज करूंगा, इग्नोर ईयर्स एंड टेक ओनली मंथ्स। नाउ हियर इट इज क्लोज द पैरेंथेसिस एंड एंटर। आप देखेंगे यहाँ पे जो है रिमेनिंग जो बचते हैं 8 मंथ बचते हैं जो कि आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप काउंट कर सकते हैं। एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे 7 मंथ कंप्लीट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके एक भी मंथ कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे आपके 2 मंथ कंप्लीट है। तो इस तरह से नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ निकाल लिया। अगर हम बात करूँ डे की, तो अब मुझे यहाँ क्या करना है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ्स इग्नोर करने हैं, रिमेनिंग डेज लेने हैं ओनली। तो मैं क्या करूंगा, डेटेड इफ ओल्ड डेट कॉमा न्यू डेट कॉमा, इग्नोर कर दूंगा कंप्लीट मंथ्स, इग्नोर कर दिए। नाउ डी ओनली टेक रिमेनिंग डेज। नाउ क्लोज द पैरेंथेसिस एंड एंटर। नाउ द डिफरेंस इज 3 years 8 months and 14 days, and let's drag and drop and you can see the answer. Here we have 21 years 7 months 29 days and this is the final answer. अगर आपको इनको मर्ज करना है तो आप मर्ज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ। तो 3 years मैं सिंपल ऐड कर दूंगा ईयर्स स्पेस ईयर्स एंड
sorry, and this cell and space years, and this cell, this should be months, and days. So here we have 3 years, 8 months and 14 days. Let's drag and drop and you can see the results in this column. This time हमने तीनों को जोड़ दिया, तीनों कॉलम को, और यहाँ पे हमने आंसर निकाला। सर ये निकाला है हमने बेसिकली किसी की एज का डिफरेंस निकाला है या किसी कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस निकाला है। तो आप इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कंप्लीटेड ईयर्स और कंप्लीटेड मंथ्स को इग्नोर करते हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन है in this regard, or shall we move on? ओके सर, बात करते हैं अपने एक एग्जांपल। मैंने यहाँ पे मिस्टेकली स्किप कर दिया। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और डील करना है। सर मुझे यहाँ पे अपनी जो भी डेट मेरी एक्सपायर हो चुकी हैं मुझे उनको हाईलाइट्स करना है, बट हालांकि यहाँ पे मेरी इस समय करंटली सारी डेट एक्सपायर्ड है। मैं यहाँ पे कुछ डेट एक काम करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ और इस डेट को लेट से मैं यहाँ पे 2022 कर देता हूँ। इस डेट को मैं 11/2022 कर देता हूँ। तो मेरे पास एक ही डेट ऐसी है जो अभी एक्सपायर नहीं हुई है। मुझे क्या करना है, जितनी भी एक्सपायर डेट है मुझे उन सबको हाईलाइट करना है। जितने भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि एक्सपायर हो चुके हैं मुझे उन सबको हाईलाइट करना है। मैं एक तो क्या करेंगे आप, सिंपल, आपको जब भी किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं आपको एक सिंपल टिप्स देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। आप देखेंगे यहाँ पे ना इसने ऑटोमेटिकली एक्सपायर डेट को हाईलाइट करने का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे अपना रूल बनाना पड़ेगा, न्यू रूल। तो मैं जब भी आप रूल बना रहे हैं तो न्यू रूल से बनता है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन। आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे कोई फॉर्मूला एंटर करना है, मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। मुझे चेक करना है कि ये एक्सपायर डेट है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से इसको सॉरी इस क्योंकि आपको हर रो चेक करनी है, तो आप ये जो रो है आप इसके आगे से ये डॉलर हटा देंगे। तो अब आपको ये चेक करना है कि जो ये सेल है, आप जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ही रूल है, जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कोई फॉर्मूला एंटर कर रहे हैं आपका आंसर जो आना चाहिए वो हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आना चाहिए। अगर आपका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में नहीं आ रहा, आप कोई भी फॉर्मूला एंटर करेंगे तो आपका आंसर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इवेलुएट नहीं करेगा। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ वेदर दिस इज लेस देन और इक्वल टू टुडे। टुडे क्या करता है, टुडे आपको आज की डेट बताता है कि आज की डेट है या नहीं है। बट इसकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कि अगर मैं इस फाइल को आज बंद कर दूं और कल ओपन करूं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेगा सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि कल 15 अक्टूबर है तो कल ये अगर कोई डेट 14 अगस्त को एक्सपायर हो गई होगी तो ये उसको भी हाईलाइट कर देगा। तो ये बिल्कुल ऑटोमेशन की तरफ एक हमारा बेसिकली एक यहाँ पे मोटिव है। तो अगर हम बात करें टुडे फंक्शन की तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है। नाउ फॉर्मेट में यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूँ, फिल लेट्स से येलो। ओके नाउ क्योंकि मेरा आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आ रहा है, whether this cell is equal to or less than today, so answer would be either true or false. So click OK and you can see all expired date has highlighted. So इस तरह से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग से आपकी जितनी भी एक्सपायर डेट्स हैं उन सबको हाईलाइट भी कर सकते हैं। जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स से रेंट एग्रीमेंट, जितने भी सब कुछ आपका एक्सपायर डेट्स में आ चुका है वो आप इससे हाईलाइट कर सकते हैं। बट आपका आंसर हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आना चाहिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में जब भी आप एंटर कर रहे हैं। सर ईशान सर, मैं आपकी क्वेरी आपकी एंड में लूंगा, क्वेरी एमडी के रिगार्डिंग, डीटी के रिगार्डिंग। सर एनी डाउट इन एक्सपायर डेट्स और शैल वी मूव ऑन? Okay,
सर बात करते हैं काउंट और काउंटा की, बहुत बेसिक फंक्शन है, अगेन सम फंक्शन की तरह है। अगर मैं बात करूं काउंट एंड काउंटा, कितने लोगों ने यूज किया हुआ है काउंटा और काउंट? जनरली काउंटा लोग यूज नहीं करते हैं, काउंट यूज करते हैं। कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट एक्सेप्ट दिस ए? ओके, लेट मी टेल यू। सी, अगर हम जब भी बात कर रहे हैं काउंट की, नाउ व्हाट काउंट डज? सो बेसिकली काउंट फंक्शन, काउंट, अगर मैं बात कर रहा हूँ काउंट की, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, कुछ टेक्स्ट हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ डेटा सिलेक्शन की, सो यहाँ मैं वैसे मैनुअल करके देखता हूँ इसको। मैनुअल अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 106 रिकॉर्ड्स हैं। सो अगर मैं काउंट फंक्शन की बात कर रहा हूँ, काउंट, नाउ मैंने डेटा सेट कर लिया एंड close the parentheses. What if I will press the enter? What would be the answer? Either 106 or ignoring text or ignoring blanks. What would be the answer? I'm not pressing enter. सर एक्सपायर्ड डेट की क्वेरी अब मैं एंड में लूंगा सर। संजीव जी, सर आपका जो काउंट फंक्शन है वो हमेशा आपके नंबर्स को काउंट करता है। अगर आपके डेटा में लेट से, अगर आप डेटा की बात करें, कुछ डेटा में हमेशा एनए होता है या कुछ डेटा में अमाउंट होता है, तो आपके जब भी आप अमाउंट को, एनए को इग्नोर करना चाहते हैं और काउंट करना चाहते हैं, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आते हैं, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज काउंट, ignore the text, only take the numbers, and you can see there are 48 record in which only number is there. So count ignore the number. If I'm going to talk about count and counta, so counta numbers, text and blanks. Count ignores the number, no, it takes, so it ignores the text and it ignores the blanks, so it will not consider your blanks also. Now the difference between count and counter is counter takes the text also and count ignores the text. Now counter, so here is value 1, value 2, and now we need to select the range, enter. Here we have 106 record, there is no blank in it, so it will take the numbers, it will take the text and it will ignore the blanks. If blank would be there, you can see counter ignoring blanks, and if I'm going to delete this number, so both are not taking blanks. And if I'm going to talk about count blanks, it take only the blanks. Yes, count take only the numbers. Counter take the numbers as well as text. Now, what if I want to extract the record? Let's say I want to extract the number here, and I want to take the text from here to here. Means you can see in this data we have text as well as number. Now, what I want to do, I want to extract my number in the F column, and I want to extract my text in E column. Can anyone suggest me formula? We need to split the numbers and text. Anyone? Flash fill will not work here. Sir, is text and is number will provide you the answer in true and false. Not exactly. Not the answer. Let me just show you is text or is number. Is text. So is text. The name is very clear. Is text. There is a question mark in it, so answer will come in true and false. Now just enter, and you can see there are only true and falses. Counter minus count will provide only the text, not the number. You can see count is taking the numbers and it is not taking the text. Now let's talk about this example. If you want to split the text and the number in different column, we have two function. जनरली इसके बारे में लोग जानते ही नहीं है. पहला फंक्शन है हमारे पास ओनली टी फंक्शन.
what T function does, T function only extract the text. अगर आप किसी भी कॉलम की बात कर रहे हो तो आपको किसी कॉलम से टेक्स्ट निकालने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टी फंक्शन यूज कर सकते हैं। एंड जैसे यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे आंसर कुछ नहीं आया। अगर मैं इसकी बात करूँ ड्रैग एंड ड्रॉप, आप देखेंगे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स इसमें थे, इसने इग्नोर कर दिए बाय यूजिंग टी फंक्शन। Similarly, here we have in Excel that is called n function. It takes only the numbers and it ignores text. So here we have cell. Now just select it, press enter. Now you can see it is यहाँ पे ब्लैंक की बजाय ये जीरो दिखाता है बिकॉज ये हमेशा नंबर में आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट होंगे आपके जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे और जितने भी नंबर्स होंगे आपके यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। सो दिस इज द टू फंक्शन टी एंड एन। If you want to extract the numbers as well as text from the column, you can choose these two functions. Yes, T means text and N means numbers. Any question from T and N? सर पेन नंबर में ये अप्लाई नहीं होगा। बेसिकली पेन नंबर में यहाँ पे टेक्स्ट एंड नंबर दोनों होते हैं, तो पेन नंबर तो बेसिकली टेक्स्ट में आ गया। तो आपको ये जो एक्सट्रैक्शन कर रहा है ये बेसिकली अगर उस सेल में नंबर्स ही हैं तो नंबर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, अगर उस सेल में टेक्स्ट ही है तो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। हमारे पास सर अब लास्ट एग्जांपल बचा हुआ है। Now we are moving toward our last example, that is justify this series. Now again यहाँ पे एक सिंपल सा हम टास्क करने वाले हैं। यहाँ पे सपोज मेरे पास बिग डेटा है, आप देख सकते हैं। मुझे करना क्या है, एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं इस पे पाइवट टेबल लगाऊं तो मेरे पाइवट टेबल आंसर मेरे को सही नहीं देगा। लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ माय ईस्ट रीजन, टोटल सेल्स ऑफ माय नॉर्थ रीजन, टोटल सेल्स ऑफ माय साउथ रीजन एंड टोटल सेल्स ऑफ माय वेस्ट रीजन। तो मुझे करना क्या पड़ेगा उसके लिए, अगर आप समिट भी लगा रहे हैं, काउंटिंग भी लगा रहे हैं, अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो फिर तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा डेटा है, लेट्स से यू हैव बिग डेटा, देन इट विल बी अ डिफिकल्ट पोजीशन फॉर यू। तो आप क्या करेंगे, अगर आप समिट यूज कर रहे हैं तो आप समिट के लिए क्या करेंगे, सिंपल आप ऐसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसी तरीके से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसी तरीके से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और अब आप ये कर रहे हैं जस्टिफाई द सीरीज। बेसिकली अब आप क्या कर रहे हैं, सिंपली जो आपके नाम लिखे हुए हैं उसको आप रिपीट कर रहे हैं। हम जनरली करते हैं सर ऑफिस में, हम एक एक करके इसको रिपीट करते हैं इस तरह से। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ये एक एक करके नहीं करना है। अगर आपका डेटा कितना भी बड़ा हो या कितना भी आपके पास रोज हो तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए कर देगा। इसी का नाम है जस्टिफाई द सीरीज। हम क्या करते हैं, कंट्रोल जी प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कंट्रोल जेड प्रेस करके आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सारा डेटा बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है। सर मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, 2-3 टास्क करने हैं, ये आप नोट कर लीजिए प्लीज। आप क्या करेंगे, अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे एंड तक ऐसे, कंट्रोल शिफ्ट एंड इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट योर डेटा टिल द एंड। Now what I will do, I will press Control G from my keyboard. See, after selecting your data, you need to press Control G. Now go to special. Here it is. Now you need to choose blank. Here I'm choosing blank and click OK. If you will click on blank, you can see यहाँ पे जितने भी ब्लैंक्स हैं आपके सारे सिलेक्ट हो गए। Till now, any question in this? Shall I repeat this? Okay, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। करना क्या है सर, आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, कंट्रोल शिफ्ट एंड इज द शॉर्टकट की। Sorry, yes. Now you need to press Control G from your keyboard. Now go to special, go to blanks and OK. You can see only blanks and selected. Now आपको करना क्या है, इक्वल प्रेस करना है एंड जिस भी सेल पे आप हैं उस सेल से आपको एक ऊपर पे क्लिक कर देना है ऐसे। अब आपको यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करना है सर, क्योंकि एंटर आपका ओनली एक ही सेल पे काम करेगा,
नहीं तो आपको दूसरे सेल पे दोबारा लगाना पड़ेगा फंक्शन। आपको जब भी मल्टीपल सेल पे फंक्शन लगाना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल एंटर। तो जैसे ही मैं प्रेस कर दूंगा कंट्रोल एंटर एंड आप देखेंगे आपका रिजल्ट्स हो गए। आप देख लीजिए आपके सारे सेल्स रिपीट हो चुके हैं। ये आपका है जस्टिफाई द सीरीज। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आप देखेंगे आपका सारे सेल लिंक्ड हैं ऑटोमेटिकली। अब आप पाइवट टेबल लगाइए, समिट लगाइए, काउंटिंग लगाइए, आपके आंसर सारे सही आते जाएंगे। आपको मैनुअल नहीं करना है। सर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ क्या करना है। सर इक्वल साइन लगा के आपको एक सेल आप ऊपर क्लिक करना है। नाउ प्रेस करना है कंट्रोल एंटर। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ व्हाट विल हैपन? नाउ लेट्स से आई एम सिंपली प्रेसिंग एंटर एंड यू कैन सी इट इज ओनली वर्किंग ऑन वन सेल। नाउ व्हाट if I'm going to press control enter, let's say control enter, and you can see it is working on all the cells in the selection part. Any questions? Okay, now सुमित जी मेरे टॉपिक ओवर हो गए हैं, आप क्वेश्चन एंटरटेन कर सकते हैं सर। Thank you, Vishal bhai. And I think all topic of the agenda you have covered. Any question from the participants you can post in the chat box. Apart from those जो कल परसों के सेशन में कवर होने हैं, उनके अलावा अगर कोई टॉपिक जो आज डिस्कस हुआ है उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क रिपीट। सुनील जी इन शॉर्ट में रिपीट के लिए बोल देता हूँ। स्टिल आई वुड लाइक टू से कि ये रिकॉर्डिंग सेशन आप लोगों को अवेलेबल होगा, आपको मेल पर आज रात में या कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। यू कैन सी मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इन केस ऑफ VLOOKUP। सर मैं एक बार 3D सम रिपीट कर देता हूँ। सर 3D सम में हमने क्या किया था? जी सर 3D सम में हमने कुछ नहीं किया था। मैं आपको दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सर जैसे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे सारी की सारी सातों शीट का टोटल एक ही शीट पे चाहिए। अब आपको मैनुअल करने की बजाय लेट्स से हियर वी हैव डेटा इन शीट 2, शीट 3, शीट 4, आपको मैनुअल नहीं करना। आपको क्या कर सकते हैं, सिंपल आप इक्वल कर सकते हैं सम, होल्ड योर शिफ्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड एंड गो टू एंड ऑफ द शीट, लेट्स से शीट 7। नाउ यू कैन सी यहाँ पे इस बार मैनुअल रेंज आने की बजाय, सेल का रेंज आने के बजाय शीट का रेंज आ गया। नाउ अब मैं सिंपल यहाँ पे, मुझे ये नहीं पता कि कितने रोज हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इस डेटा को एंड तक सेट कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो टू सिलेक्ट योर डेटा टिल एंड। नाउ क्लोज द पैरेंथेसिस एंड एंटर। दिस इज द 3D sum which we have covered. Now let's drag and drop and this will tell you the answer. This will tell you the total of all the sheets here. This is the 3D sum which we have covered. Mr. Ishan is asking when VLOOKUP gave errors. So मैं आपको बता देता हूँ सर VLOOKUP एरर कब देता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। Here we have let's say A B C D 1 2 3 4। VLOOKUP की जनरली मिस्टेक हम जो करते हैं मैं आपको बताता हूँ, B and A। नाउ अगर हम बात करें VLOOKUP की, ना मुझे VLOOKUP से क्या करनी है, वैल्यू ढूंढनी है, रेंज। VLOOKUP lookup value is this one, comma table array is this one, comma 2, comma 0. Now press the enter and you can see answer is correct because it is showing 2. Now let's drag and drop and answer is still correct. Now what if I will change this B to C? Sir, I will email this sheet to Mr. Sumit ji. You can get this sheet from Sumit ji and you can grab the list of formulas. Now, what if I will change this C to A? You can see you will get the error. हम जनरली VLOOKUP में यही गलती करते हैं। VLOOKUP में हम इग्नोर कर जाते हैं सर लॉकिंग पार्ट को। आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था F6 से G9 और जैसे ही मैंने इसको मूव किया था एक सेल नीचे, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा सिलेक्शन चेंज हो गया F7 to G10. What I need to do, I need to lock this table array and lock this F4
Now let's drag and drop. So यही एक तरीका है आपकी VLOOKUP को एरर को अवॉइड करने का, तो आप VLOOKUP की एरर आपकी तरह नहीं है. Sir, in case of duplicate value, what would be the solution? If you are using Office 365, then the filter function would be the best solution for that. Your upcoming faculty will cover that. Is any condition regarding sorting in VLOOKUP? I'm not getting this question. Please elaborate in detail. Sir, in Justify, after selecting blank, what we need to do? Let me repeat this. Let me remove the formula. So this was the example, and after selecting blank, what we need to do? Just press Control Z. Sorry. Select your data. Press Control Z. Special blanks. Okay. Now we need to do what? We need to simply press equal sign, go up, and press Control Enter. Only 3 steps. इंटरसेक्शन प्लीज क्लैरिफाई सर. अब इंटरसेक्शन मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ. इंटरसेक्शन में सर क्या किया था हमने. सर इंटरसेक्शन में बेसिकली हमने 2 वैल्यू ढूंढी थी, जिसमें कि हमने मैच फंक्शन के रिगार्डिंग पहले पोजीशन ढूंढी थी. उस पोजीशन को हमने कॉलम एंड टेक्स्ट नंबर में डाला था, तो हमने यहाँ पे VLOOKUP से उसकी वैल्यू ढूंढी थी इंटरसेक्शन की. इंटरसेक्शन में बेसिकली आपके पास 2 वैल्यूज होती हैं, जिसके बेस पे आप आंसर ढूंढ रहे होते हो. आप देखोगे एक आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, एक आपका वर्टिकल फॉर्म में. A to B ascending order, use sort order. There are multiple chats in there. So, any more questions? VLOOKUP में सॉर्टिंग करने के लिए आप सॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हो 365 में. सुमित जी, आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस ले लिए. To fill up blanks, can we use A2 and upward? I'm not getting your question. What does it mean? Let me just come to that sheet, and I would be able to understand your question. Mr. Sanjeev, you want this sheet? Yes, please ask. Okay. Yes. Now what next?
सी अगर हम A5 पे कर्सर रख देंगे तो आप देखेंगे आपका सिलेक्शन चला जाएगा, आपका जिस भी सेल पे कर्सर आ गया है उस पे आ गया सर, ये कर्सर ऑटोमेटिकली आया, मैंने नहीं रखा किसी सेल पे कर्सर। कंट्रोल Z, आप देखेंगे मैंने तो कर्सर अपना A3 पे रखा था, कंट्रोल Z एंड स्पेशल एंड ब्लैंक्स एंड ओके, ये ऑटोमेटिकली मेरा B5 पे लेके आ रहा है। तो मैंने जिस भी सेल पे एक्टिवेट सेल पे जो भी है मेरा, मैं उससे ऊपर जा रहा हूँ, ना मेरा A5 मेरा सॉल्यूशन है, ना मेरा B5 सॉल्यूशन। एंड कंट्रोल एंटर। I hope you have got the solution. I think there is no more questions. Sumit ji, Yes, sir. shall we leave now? Yes, sir. I think we have completed all the things in detail, and wonderful session. So, a special thanks to you for your program, and I hope everyone have enjoyed and learned so Without you, many. it is not possible. No, definitely. All are doing great. And just a minute, I am just sharing a token of gratitude. This is for you from my side, and a hard copy will be sent to you in your office. Okay, no. And Thanks for the honor. thank you to all participants. And tomorrow Nikita Maheshwari ji will address the second day. So thank you, Vikal ji, for your wonderful session. Thank you so much. Thank you.